Hello everyone and welcome to Go Classes. I am Pragati. About me, so my rank in GATE CS was 285 and I was preparing for the past 1 year, and this year I will be joining IISc Bangalore MTech in Computer Science. So firstly, thank you all for joining. Now, how I would want this to go about is that you can share like anything you want to share about your preparation journey, any doubts you have, so that the agenda is that any blockers you have to get rid of it, so that after this session, when we go back to studying, our head is properly clear. All right. So make the most of it. So one after the other. I think first, just a second. All right. Hi, Pragati. Hi. So I have attended one of your previous mentorship section, and I also have discussed about some issue I have been facing the problem where I am often unable to solve the questions on my own. But once Yeah. see the questions and the questions or the solutions, I immediately feel like yes, I know this concept. I can answer it. Right. Uh, Following your Right. advices, I went through each topics one by one and find my weaknesses area. Mm. From that, I can understand that I can easily solve the direct questions very comfortably. But Mm. however, if a question is twisted even slightly, I am completely blanked out. Like I thought practice similar problems would help, but I Mm. often find difficult to get a sufficient of similar questions. Even though if I found them, I feel like what is the use of that? If a new pattern will come again, or else a Right. new formula will come again, I will blank again. Like that, I feel. So, you have any suggestion to how to overcome this fear, or how Okay. to answer every questions like that? Right. So usually when you look at the solution, do you understand it after giving it time, like at least that particular problem, or you still feel like that you don't get it for No, no. like most of the questions? Most of the time, every time when I see the solution, I am understand that yeah, this may work like that. But I couldn't come up by own. No. Yeah, right. So firstly, I would like to share something that I read. Like recently, there was Anjali was also a Go classes student, and she has passed out from ISC already. So I saw her post that for like in your gate preparation, you do not have to be extraordinary every day. As long as you show up ordinary every day, that's also really good. So what I mean by this is that it's for a lot of problems that is completely fine to not be able to solve it on your own. So as long as you're making that effort to still practice questions every day and still go through the solution, then you are actually going in the right direction, I will assure you. So I even looked at the questions you had shared me, right? Two questions you had shared me personally. So personally, I don't get time to reply, so it's best if we discuss here. But Yeah. yeah, I did look at those questions. So right, so you know, such questions which are slightly tricky or a bit different from the straightforward PYQs. Even if I go back to my journey, so that is normal that you don't get it at on your own. So it's okay. As what you have to do is you look at the solution, you read all the approaches. If there are multiple approaches to solve the question, then read that also. So if you're able to understand the solution, then it is normal, it will happen, right? So that's why even when I ask you all to give subject based test or these things, right, when you get when you start with the test series, so I already tell you guys that even if you have completed a subject properly, even then in those questions, you won't be, most probably, you won't be able to solve it in the first go on your own, and you will have to look at the solutions. And there will be questions that even after looking solution, you will forget after a few weeks or months. But what you have to do to get a good rank is that whenever you go through that question which you have forgotten or you are not able to solve on your own, don't lose confidence in yourself, because that happens with everyone. So you just have to look at how to what's the correct way of solving it, and from scratch, not just the solution that okay, this formula they have put and the solution. So when you're not able to solve the question, look at it from step one. See why you were not able to do it. So if there was a tricky like direction in which you could not think, then that is okay. You look at the solution and now you will not understand, but over the months it will help you. All right. So when have you started preparing? Around April, ma'am.
Right. So you have just started. This Uh, yes. capability is built over time. And even if it is the same way, even after a few months, that is also completely normal. That happens. What you have to do is you have to keep solving those questions, keep looking at the solutions. You don't have to break this flow, this consistency, right? Every day you have to take out some time for solving questions, and that is enough. This thinking capability, it will come automatically on your exam day if you have been doing questions for the past 1 year, right? Even so, it happens in the time of November also. I In November I was giving test series, and even for subjects I had completely done, there were a lot of questions that I was not able to. And many of my friends also, now we discuss, there are a lot of questions that we are not able to solve, but we look at the solution, we try to look at the approach, right? So as I said, one thing is that you forgot the topic, right? So then in that case you have to revise the topic. Second is that you think, a lot of times we see a question and we think, oh, this was the way we had to go about it. So it's like we understand it, but it's just that it didn't click. We could not think yet we could solve it in that way also, that we had to modify this formula or had to change the equation at this step. But it only comes through solving. And now if a similar question will come in your gate exam, you will be able to handle, right? For the once you have seen the solution, Yeah. written it in your diary. So that is what matters, because in gate exam, not every all the six, like out of 65, 15 are the aptitude questions. In the remaining 50, not all are like out of the box or different. A lot are very repetitive also, the pattern. And anything new that you encounter in your gate exam, that would most probably be the one which you're doing right now, which you're not able to understand. That's the whole point of solving questions, because you won't be able to do it, but you look at the solution and then you understand, and you just keep doing it for the rest of the months. Okay, That ma'am. is the only way. Yeah, Okay. thank you. Yes. All right. Then, hi Aryan, you can unmute yourself. I'm watching lectures and I have completed my 2 or 3 subjects. But I want to ask Okay. to you that there are multiple things to do, like watching lectures, weekly quizzes, DPPs, and revision. So Yes. by the end of your syllabus, like October or September, what was the things that you completed, like lectures, weekly quizzes, DPPs, and all? So I want to ask, like, what were the things that you completed, and what were the things that were left after the October and that you have completed later on? Okay, so by, like, for me, by October end, I had done about 8 subjects completely. By completely, I mean along with most of the PYQs. So lecture plus PYQ plus about 2 rounds of revision. Because for me, revision, I did not have any fixed timeline. Whenever I used to feel that I'm forgetting a subject, it was a habit of mine to go through that. Just a second. Yeah, so it was a habit of mine to go through that subject as soon as I felt that I'm forgetting it. So by October, in the month of October, I had done 8 subjects along with proper revision and PYQs. But now I was not a course enrolled student. I was preparing from YouTube, so I did not have access to very good questions, which is why when I purchased the got the test series in October end, I really felt that I was lagging behind, and for the next 3 months, I had to give like almost apart from 3 to 4 hours of sleep, almost all the time went in studying for me, because earlier I had not solved enough questions. So that was a mistake which I made. So first of all, my rank was 285. So if I had solved more questions, attempted more tests, it could have been under 50. Second is that now this is still a bit challenging, right? It is very risky to keep all the question practicing towards the last 3 months, because there are practical things like you could be falling sick. Now if I had fallen sick in November or December for like if something serious would have happened, then gate would have the exam would have been completely ruined for me, because for me the main preparation happened from November to January. I took off from my work almost the entire Jan. And in November and December also, I was watching all the Go classes lectures and the test, analyzing the test. It like entire day was going there.
So it's better that you solve. So by October end or November, I would say your syllabus should be over in terms of watching the lecture. You should have revised every subject at least one time, the entire long notes, not the short ones. Long notes revision one to two times you should have revised, and PYQs should have been completed by then. So this is the, I would say, the minimum thing that you should have done by that time, that is October and November. And DPPs and these questions also, if possible, do the most that you can. And for PYQ solving, I have already suggested that you can, if you have completed 2 to 3 subjects, now you have, time to do PY, like you have something, some topics to solve PYQs for. So you can fix a certain time in the day to watch lectures. Like most of the time, keep it for lectures only. Then maybe keep 2 hours for PYQs. You can decide today only, like a day before only, decide which topic you will be doing tomorrow. So if you pick any subtopic, like it's best if you have PYQs sorted subject wise and topic wise. So keep it sorted that way and pick a subject and a topic for the next day, right? And you will know that you have to solve that. Now, if you are forgetting topics from, if you're not able to solve questions from that topic, so that's the benefit of doing it topic wise, that you can just revise that topic. Now, so today, if you're solving PYQ and say you're not able to solve questions of sequential circuit, so what you do is that maybe you do DPP or any other questions, and the next day you will know that apart from watching lectures and PYQ, you have to give a few hours to revise the subject digital logic also. Or you can already, what you can do is like watch the lectures. Then, if you decide to solve PYQs of DBMS, then revise DBMS also in 1 to 2 days, and from the third day start solving PYQs topic wise for DBMS. Right. And then again, maybe keep 1 hour for DPP, or in entire week, you can select one day when you will be doing the weekly quiz along with analysis. So right after giving the quiz, do the analysis then and there only, because later on, what, like most probably, if you're leaving these like mock test and DPPs for later, then you will not be able to solve it. That's like how it usually works. So right. To do all these things, you have to manage out time. Like you already have to plan your day in the sense that what time you will be doing what. So your brain or your body will automatically adjust to it. So when you are more focused, keep that time for watching the lectures, and keep 2 hours fixed for PYQs and DPP, like that. Like by the end of October, if I'm done within PYQs and all the lectures, and Yeah. might some weekly quizzes. So is it okay that I complete the subject Yes. 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 That's good. Uh, that would be really good. after And completing the subject? But I'm not able to. I'm not sorry, getting time for weekly I quizzes couldn't only. hear you. Can you repeat, Aryan? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm able to complete all the PYQ just after the completion of subject, but I'm not able to complete weekly quizzes and DPPs. Just after subject. So is it fine that I'm going with PYQs only, and at the end of October I'll complete all the weekly quizzes? DPPs don't matter because DPPs have easy questions, but weekly quizzes have good questions. I have attempted one or two. So is it okay Okay. to do weekly quizzes after October and now only PYQs in lectures? See, if I give suggestion, as what I can think is that the most important is the lecture and PYQ. So, if in order to solve the weekly quiz and DPP, you are rushing the lectures to complete it quickly, so you can give time to weekly quizzes, then that would be completely wrong, because this time when you're watching the lectures, it is very important that you do it very, very thoroughly and you understand everything. So that's the priority, because all the knowledge you get is from the lecture, right? So lecture and then PYQs, because already they have come in gate exam, so they are like non-negotiable. These two things have to be completed. Now, one
sort of reality check I would like to give you is that if you are keeping weekly quizzes for November or that time, then again you will not be getting time to solve these questions, because by then no matter how many times you have revised, you will still feel like you're forgetting things, and you'll have to revise again in November also. And at that time, if you because I had given the subject wise test and topic wise test. Now these are also a really good way to revise. Like in November uh, types, when in that last 3 months when you are revising, it's best to solve the subject wise test of the test series of Go classes. So then a good revision happens. So you'll have to solve that. Plus you'll have to revise the notes also for the subjects that you find tougher. Then you'll have to do the full length mock test also. Then AIMTs will also start happening from November end or December. So you won't be there will be a lot of things, and most of like all of these resources will be having good questions. So that is also fine. But just know this, that towards the end also there will be many things. So if possible, if you are able to keep up with the lectures and with the PYQs, you can fix a day like Saturday, you can keep 2 hours for the weekly quiz if possible. Like, if you keep it towards the end also, that is also fine, but just a reality check that that phase you'll have many other questions to solve. So weekly quizzes, most probably you won't have time. Okay, okay. And Yeah. my next question is that after how much duration a full subject should be revised? Like I have completed C programming and data structure by the end of like February, just after the gate exam. I started for the gate preparation. So the first chapters I completed was C programming and data structure. So after that, I have not completely revised it. So when should I revise these subjects? How much duration should be? How much gap between should we to revise these subjects? Okay. So see, firstly, for subjects like uh, especially these two subjects like C and DSA. So these are mostly like logic based, right? You have to look at the programs, and it's logic based. It does not have much theory in it. So for specifically these two subjects, the best method to revise is to give the topic wise test and subject wise test for these two subjects. For the remaining 8 subjects, I would say whenever if you have completed, say, operating system today, now after 2 to 3 weeks, whenever you start feeling like I've done three subjects, I'm on the fourth one, and I'm forgetting the last 3 subjects. So don't let this much of backlog happen for revision also. So, and revising, actually it does not take that much time also if you keep doing it in between of your preparation only. If you keep it towards the end, or if you take it as a very big thing, then it will be taking time. So I would say that if you have completed a subject any random day, just sit and like suppose you have completed 2 subjects, and you're on the third one. So now any random day, like you can take a weekend. So you can give maybe in the first half of your weekend, you can continue watching lectures and PYQ solving thing, and maybe 4 to 5 hours on both Saturday and Sunday you can keep for revision, and you can revise one. You can target one subject entire revision in 2 days. Now it is possible that it will stretch, that is okay, but try to keep the very strict timelines for revision, because you just have to go through the notes. So it could feel slightly boring also. So keep a tighter schedule so you revise it quickly. Right. So your goal should be to ideally revise the all the subjects twice by November. Because honestly, it's very important to remember every concept. Like if there is, suppose, computer network, then there are 7 layers, and in there is different function of all 7 layers. Like say, whatever error control, flow control. I remember there are multiple topics, and you have to remember each one of them, because there are many direct question also that come, and they can come from any topic. So short notes ka revision is good if you do it in the end, right? Right before your exam. But long notes you have to revise. Like you have to be sure that when you think of a subject, you have to be confident that I remember everything. So as long as you're not getting that confidence, just keep revising whenever you get time. There is no Oh, fixed thing. Like for me, I felt like I forget things
easily, and I used to feel very like pressured if I've completed three subjects and I'm on the fourth one. Then I used to feel a little panic that I haven't revised the previous three subjects at all. So I used to make sure that I didn't let that happen. So after doing two only, if I'm on the third one, I used to make sure that I'm revising at least one subject. So at a time, I don't have more than two that are that I've never revised. So that way. Right. Okay, Revision is very thank important. you. Also, when you revise, it will feel like it's a time waste because you won't be learning any new concept. You won't be solving any questions, and just going through the notes, it feels like you're not doing much, but that is actually very important. So do take out time for that, and but not a lot. Keep it very tight, the schedule for revision. Okay. Yes, okay, thank you, ma'am. Yeah, right. And once again, for C and DS, I don't think you have to revise the lecture notes or theory that much. Just solve questions for it. Solve all the PYQs. There are many PYQs for C and DS. For C mostly, I think there were about more than 100 questions. So have you done all of them? Yes, ma'am. Just after completing the subjects, I have completed both of the PYQs of both subjects. Okay, right. So that's nice. So when you're solving the PYQs, just circle the questions which you were not able to do. So for revising these two subjects, you can just go through the circled questions or do subject-wise tests for these. All right? Yes, ma'am. Thank you. Okay. Hello, Hi, ma'am. Am I audible? Neeraj, you can unmute yourself. Yes, yes, you Hello, are. ma'am. मैम एक्चुअली आई एम नॉट मेकिंग नोट्स तो मैम मैंने अभी Yes. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है कॉम्पैक्ट Hmm. कोर्स से तो सर ने उसमें Okay. समरी लेक्चर्स का सिर्फ नोट्स दिया है एंड पीवाईक्यू Uh, के 1 or 2 आवर्स के लेक्चर्स रहते हैं हर एक के सो उसके नोट्स नहीं दिए सो मैं उसके लिए भी स्क्रीनशॉट लूँ नोट्स का या फिर वो सारे क्वेश्चंस को बुक में लिखूँ लाइक सॉल्व करूँ कौन सा बेटर है तो हाँ, तो जो थ्योरी पार्ट है, लाइक जब जो सर के लेक्चर्स है, उसके तो नोट्स है, राइट? एनोटेटेड नोट्स. यस मैम बट पीवाईक्यूज की जो लेक्चर्स है ना उसमें नोट्स नहीं दिए है तो उसको स्क्रीनशॉट लूँ या फिर सर ने जो बताया वो हर एक को लिखूँ मैं अपने बुक में कौन सा बेटर रहेगा पीवाईक्यूज के लिए जब आप लेक्चर देख रहे हो ना, तो एक-एक पीवाईक्यू पहले खुद सॉल्व करो पॉज़ करके एंड देन आप सर का सॉल्यूशन देखो। बट अगर आपको उसके बाद भी कोई क्वेश्चन ट्रिकी लगता है, तो फिर उसका आप नोट भी कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लाइक एनी ऑफ दैट इज़ फाइन। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पीवाईक्यू का लेक्चर देख रहे हो ना, तो एक-एक क्वेश्चन पॉज़ करके पहले खुद से ट्राई करना। अगर वो लेक्चर सिर्फ पीवाईक्यू का ही है, दैट सॉल्विंग पीवाईक्यू ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो बिफोर एवरी क्वेश्चन आप एक रफ नोटबुक लेके बैठो और फिर सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो। अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हो तो अगर जो क्वेश्चन आपका मैच नहीं हुआ या आपका ऐसे तुक्के से आ गया आंसर, उसका एक्चुअल अप्रोच कुछ और था, तो ऐसे क्वेश्चंस है वो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। आई फील लाइक दैट्स फाइन। आपको मेन फोकस करना है बस कि खुद से आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली वीडियो देख लोगे तो आपका वो थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं बिल्ड होगा, राइट? तो आप बस एक रफ नोटबुक लेके बैठो और एक-एक करके देन यू सॉल्व द क्वेश्चंस, और जो नहीं आ रहे उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बाद में अगर आपका मन करे, लाइक अगर आपने सपोज डिस्क्रीट मैथ्स के स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं उन सारे क्वेश्चंस के जो आपसे नहीं बने थे या फिर आपसे गलत हुए थे, आपको लगा था कि हाँ ये थोड़ा ट्रिकी है मेरे लिए, तो आपने इन सबके स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं, तो अगेन जब हम स्क्रीनशॉट्स भी ले लेते हैं ना, तो अ लॉट ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है कि कई बार ऐसा होता भी है कि आपके स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं फ़ोन में और उसे दोबारा देखते भी नहीं है। तो वो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मेक श्योर करना है कि आप कुछ वीक्स बाद या फिर 1 मंथ बाद आप वापस से वो स्क्रीनशॉट्स का फ़ोल्डर खोलो और फिर उसमें से एक-एक करके क्वेश्चंस वापस से देखो और सोचो आपको ये अप्रोच आपको याद है कि नहीं? या फिर ये जो लॉजिक आपने न्यू सीखा था वो आपको याद है कि नहीं? राइट। और अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो उसी टाइम या तो उसे फ़ोल्डर में सेव कर लेना या फिर पीडीएफ बना लेना। क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट्स ऐसे रैंडमली गैलरी में पड़े रहेंगे फिर तो उसे दोबारा मतलब कभी नहीं देख पाओगे आप। अब मैं स्टार्टिंग में खुद से सॉल्व कर रहा हूँ और मैं हर एक नोट्स हाँ। हर एक क्वेश्चन को है ना बहुत डिटेल में लिख रहा हूँ सो हर एक क्वेश्चन को डिटेल में लिखूँ या सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चंस को लिखूँ जो समझा नहीं मतलब सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चंस को ही लिखो। अगर वो पीवाईक्यू है और आपसे डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा है, देन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ आपकी अप्रोच मैच भी कर रही है देन दैट इज़ फाइन। हर क्वेश्चन को तो ऐसे डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ऐसे तो बहुत क्वेश्चन्स आएँगे। अभी आप मॉक टेस्ट दोगे वीकली, कोई सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट, और मतलब
काफी क्वेश्चंस होते हैं, तो आई फील लाइक हर क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? अगर आपका वो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी लेक्चर के किसी पॉइंट से बना हुआ है पीवाईक्यू, क्योंकि तभी आपसे सॉल्व हो पा रहा होगा, क्योंकि आपने लेक्चर में कहीं ना कहीं वो चीजें सीखी होंगी, तो आपको वापस से लिखने का जरूरत नहीं है पूरा क्वेश्चन। बस कुछ जो ट्रिकी लग रहा है, या तो वो पीवाईक्यू, हाँ सिर्फ ट्रिकी वाले का ही लिखो या फिर स्क्रीनशॉट लो, सारे मैम, की और जरूरत नहीं है। वन मोर थिंग हम्म, मैम, हाँ। कंसिस्टेंट कैसे रहूँ? लाइक 2-3 दिन पढ़ता हूँ, फिर थर्ड दिन से फिर से ड्रॉप होने लग जाता है बाहर। आप अभी क्या कर रहे हो, लाइक कॉलेज स्टूडेंट और? मेरा वैकेशन चालू है, अभी फाइनल ईयर में हाँ, एंटर करूंगा। ओके, ओके। हाँ, तो कंसिस्टेंसी तो यू डोंट, मतलब ये तो आपको नहीं ब्रेक करना है, आपको इनफैक्ट एक दिन भी नहीं वेस्ट करना। अभी आपका कॉलेज स्टार्ट होगा, फिर तो और जब एग्जाम्स होंगे, देन ऑफ कोर्स उसमें तो एक वीक जाता ही है। उस एक वीक, एग्जाम वाले वीक आपको अगर 4 भी सब्जेक्ट है तो एक दिन पहले तो पढ़ोगे ही, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वाला मंथ कितना इम्पोर्टेंट है। और अगेन आप मतलब कहाँ पे ही ब्रेक लोगे, आई थिंक यूजुअली इट्स बिकॉज हम फोन देखने लग जाते हैं। तो जितना आप फोन से कट ऑफ कर लोगे, फोन, टैबलेट, लैपटॉप, इन सब चीजों से जितना कट ऑफ कर लोगे, देन स्टार्टिंग में थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगा, बट आफ्टर अ पॉइंट यू विल गेट यूज टू इट, राइट? तो ये अगर आप कर रहे हो 3 दिन पढ़ के फिर 1-2 दिन का ब्रेक हो जा रहा है, देन दैट इज नॉट नाइस। ये तो आपको मैम, ही करना पड़ेगा। हाँ। आपने एनोटेड एनोटेड नोट्स बनाया था ना, सो आप रिविजन कैसे करते थे उसको? लाइक कब आप स्टार्ट करते थे रिविजन? रिवीजन ऐसे, एज आई सेड, अगर मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ लिया है तो उसके बाद लाइक मैंने डीबीएमएस और सीओए मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसके मैंने नोट्स बनाए थे। तो 1 महीने बाद ही, लाइक ऐसे रैंडमली, मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैंने एक्चुअली 2 बार भी, मैं कम ही बोल रही हूँ, मैंने तो बहुत बार अपनी नोटबुक और पीडीएफ गो थ्रू करी है। तो इन दोनों सब्जेक्ट के मैंने सपोज नोट्स बना रखे हैं, तो फिर रैंडम डे पे जब मुझे लग रहा है कि अब ऐसे 3 सब्जेक्ट्स हो गए और अब मुझे रिवाइज करना है कुछ क्योंकि याद नहीं है, तो सपोज मैंने सीओए की नोटबुक ले ली है, तो फिर मैं ऐसे देखती थी, ऐसे सीओए की नोटबुक है, इसमें इतने पेजेस हैं, तो बस मुझे इतने पेज ही रिवाइज करने हैं। और मैं टारगेट बहुत कम रखती थी कि मैं अभी अगर आफ्टरनून में 3 बजे रिवीजन करने बैठी हूँ, तो मेरा टारगेट होता था कि मैं आज खत्म, ये रिवीजन शाम तक खत्म कर लूंगी। और ये कभी भी होता नहीं था, पर ऑफ कोर्स उस चक्कर में एटलीस्ट 2 या 3 दिन में तो रिवाइज हो ही जाता था। तो माय टारगेट वाज कि मुझे ये सारे पेजेस खत्म करने हैं। तो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू रिवाइज। और अगर जो एनोटेटेड नोट्स है बाकी सारे सब्जेक्ट्स का, तो आई रिमेम्बर कंप्यूटर नेटवर्क में अराउंड या फिर डिजिटल लॉजिक में 13 पीडीएफ थी। तो मैंने सारी 13 लेक्चर 1 to 13 ऐसे खोल लिए लैपटॉप में एक ही साथ, और फिर जैसे जैसे एक होती जा रही है मैं पूरा रीड कर रही हूँ, फिर क्लोज क्लोज, फिर टैब वो क्लोज होता जाता था, और फिर लास्ट टैब क्लोज मीन्स फिर ये सब्जेक्ट ऐसे खत्म, रिविजन। तो वो मेरे को थोड़ा मेंटली भी हेल्प करता था कि ट्रैक कर सकती हूँ मैं कि अभी इतने सारे टैब्स खुले थे, अब आधे बंद हो गए, बस आधे और करने हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक यू हैव टू पुश योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली। इतना इजी तो नहीं होता इवन रिविजन, बट हाँ, यू हैव टू पुश योरसेल्फ रियली हार्ड। एंड मैम, मैंने एक्चुअली अभी स्टार्ट किया, तो मैं बहुत लेट हो गया हूँ क्या? क्योंकि लाइक सब लोग तो मार्च या अप्रैल से स्टार्ट किए हैं, सो मैं बहुत लेट हो गया हूँ क्या? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, मैंने भी जून से ही स्टार्ट किया था, बट अगेन कीपिंग इन माइंड कि आप एक भी दिन का ब्रेक नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स जो लोग पहले से कर रहे हैं, जो लोग थर्ड ईयर से कर रहे हैं, यू हैव टू बीट देम ऑल्सो। और मतलब सबसे आगे निकलने का एक ही तरीका है, दैट आप कंसिस्टेंट रहो, राइट? और पढ़ना तो ज्यादा पड़ेगा, राइट? अब अप्रोक्स आपको 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा ओके दिन मैम, में। थैंक यू सो मच। ओके। एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ कंसिस्टेंसी, देन जस्ट कीप योर फोन अवे, फोन तो बिल्कुल भी मत चलाना। यही एक एडवाइस है एक्चुअली, फोन नहीं चलाओगे आपकी कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाएगी, ओके मैम, थैंक यू। राइट? ओके। हाय विराज। हेलो। मेरा डाउट ये है कि मैंने एक मार्च एंडिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और मैं अब थोड़े टाइम पहले डिस्क्रीट मैथ्स में मैं जो ग्रुप थियरी स्टार्ट हुआ ना, जब से हम्म। तब से मैंने ये वीकली शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट किया है जो गो क्लासेस वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। और हाँ। मुझे ये डर, ऑलरेडी मैं मान लो ना 40 to 45 डेज बिहाइंड हूँ, मतलब वो शेड्यूल अप्रैल का चल रहा है और मैं अभी जून स्टार्ट हो गया है। हम्म। तो क्या मैं यही फॉलो करना वो करूँ?
कंटिन्यू, मतलब मुझे ऐसे डर है कि कहीं एंड में जाके सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं। कि वीक मतलब जो शेड्यूल है जो गो क्लासेस पर चल रहा है वो आप अगर साथ में चल पा रहे हो तो ठीक है, क्योंकि मतलब बेसिकली अगर आप उसके हिसाब से नहीं भी चल पा रहे हो तो भी ठीक है। द मेन लाइक जो मेन चीज वो ये है कि आपके अगर आप सीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना। यस यस यस। हाँ, तो फिर 10 सब्जेक्ट हैं, तो आपको ऐसा टारगेट बनाना है कि अक्टूबर एंड तक लाइक नवंबर से पहले आपको सारे 10 सब्जेक्ट विथ लेक्चर्स खत्म करने हैं। आपको सारे 10 सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के सारे पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, और आपने सारे सब्जेक्ट्स एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज करने ही है। अगर कोई बहुत ही इन डेप्थ जैसा सब्जेक्ट है जैसे सीओए हो गया या फिर कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये सब आपको 2 बार रिवाइज करने हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए। अब ये आप कैसे भी कंप्लीट करो मेरे हिसाब से, या तो आप कोर्स के अलोंग कर लो या खुद से कर लो, वो आपके ऊपर है। अगर आप एक बार में ऐसा सोच के चल सकते हो कि आप एक बार में 2 सब्जेक्ट उठा सकते हो। अगर एक लाइक कभी-कभी बोरिंग लगता है, और 2 इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में दोनों करना है। अगर आप 2 उठा रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि 3-4 दिन आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिर उससे बोर हो गए तो फिर 1-2 दिन दूसरा सब्जेक्ट कर लिया। तो एक टफ और एक थोड़ा-सा ईज़ी ऐसे आप करके 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। और आप इन दोनों सब्जेक्ट के प्रॉपर आपको लेक्चर्स खत्म करने हैं, कंप्लीट सारे मॉड्यूल्स, बीच में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इन सब के साथ आपको ये 2 सब्जेक्ट खत्म करने हैं। और क्योंकि सर बीच में क्वेश्चंस भी कराते रहते हैं, थोड़े बहुत पीवाईक्यूज उसमें भी कवर हो जाएंगे। तो जब ये दोनों कवर हो जा रहे हैं और आप अगला नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हो, तब इन दोनों के पीवाईक्यू साथ में करना स्टार्ट कर दो। तो अब अगर आप दिन में 12 घंटे लेक्चर्स देख रहे थे, तो अब आप सिर्फ 8 आवर्स भी देखो और 2-3 घंटे पीवाईक्यूज के लिए निकाल के रख लो। अगर आपको लगता है कि सुबह आपका फ़ोकस ज़्यादा है, तो आप सुबह उठते ही लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो, और रात को जब आप थोड़ा थक जाते हो, तब शाम से वो टाइम या फिर रात को ऐसे 9 बजे के बाद आप जब तक भी उठ पा रहे हो, ऐसे अपने हिसाब से फिक्स टाइम कर सकते हो कि आप पीवाईक्यू करोगे। अगर आपने मार्च एंड से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो अब आप ऐसा कर सकते हो कि सब्जेक्ट्स जो भी चल रहे हैं, वो आप लेक्चर सुबह कंप्लीट करो, या फिर एक किसी भी एक फिक्स स्लॉट में, और 1-2 घंटे आप जो पहले सब्जेक्ट्स कर चुके हो उनके पीवाईक्यूज करने पे फोकस करो। तो मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप चाहे जो भी शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, जो आपका टारगेट है वो ये है कि अक्टूबर तक आपके सारे 10 सब्जेक्ट अच्छे से क्योंकि लेक्चर्स भगा के देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं करे होंगे, तो बाद में आप जो भी क्वेश्चन ट्रिकी है उसका सॉल्यूशन देख के भी आपको समझ नहीं आएगा। तो और लेक्चर्स आप दोबारा से देखना तो मतलब बहुत टाइम वेस्ट है। तो आप ट्राई करो लेक्चर्स एक बार में ढंग से समझो, और जब लेक्चर देख रहे हो उस टाइम पे मत सोचो कि इतना पेंडिंग है और ये सब है। लेक्चर देखते टाइम सिर्फ लेक्चर पे फोकस करो, और अक्टूबर तक आपने बस सारे 10 सब्जेक्ट के लेक्चर्स खत्म करने हैं और सबके पीवाईक्यूज करने हैं और रिवीजन करना है। इतना भी कर लोगे तो बहुत है। उसके अलावा आप जितनी वीकली क्विजेज और ये सब कर पाओ, अगर शेड्यूल के साथ चल पाओ, तो मतलब ये सब अ, अच्छा है। बट हाँ, इफ यू कंप्लीट बस सब्जेक्ट्स और पीवाईक्यूज ही कर लो तो वो भी बहुत अच्छा है। कुछ भी उसमें खराब नहीं है कि आप लाइक कुछ गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मतलब मैं वही कर रहा हूँ अभी, जितना मैं ये गो क्लासेस का शेड्यूल में से फॉलो कर रहा हूँ ना, उसमें से पीवाई क्यू हो जा रहे हैं दिन में, और हुँ। वीकली क्विज़ेस भी रेगुलरली हो रही है। वो सब तो हो जा रहा है, पर मुझे सिर्फ यही डाउट था कि अक्टूबर एंड तक, मेरा भी टारगेट वही था कि अक्टूबर एंड तक मैं कंप्लीट कर लूँ सिलेबस। पर अभी मैं हाँ, ऑलरेडी राइट। 40-45 डेज बिहाइंड हूँ, तो वही सिर्फ एक डाउट था। अभी तक आपने कितने सब्जेक्ट्स कर लिए हैं? अभी तक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूरा हो गया, डिस्क्रीट मैथ्स में बस एक ग्राफ थियरी बचा है, और सी प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल 1 खत्म हो गया। ओके। अ, ओके। ठीक है। इसीलिए वैसे मेरा लाइक जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने ऐसी मेरी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि कि मैं इंजीनियरिंग मैथ्स और डिस्क्रीट मैथ्स के टॉपिक वाइज करती थी बीच-बीच में, क्योंकि लाइक ये इतना वैसे तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है काफ़ी ज़्यादा, बट ये मतलब सबसे लेंदी है क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो अपने आप में ही लाइक सब इंडिपेंडेंटली अलग-अलग है। तो एक बार में खत्म करने में से काफ़ी टाइम लगता है, और फिर ऐसा थोड़ा लगता है कि इतने टाइम में एक ही सब्जेक्ट हुआ है। दो आपने सबसे बड़ा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया तो इट्स गुड। बट हाँ, नाउ आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ये सारे जैसे सीओए और कंप्यूटर लाइक कोर सब्जेक्ट्स भी करना स्टार्ट कर दो। वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, बट हाँ, राइट।
और आप बस अपने हिसाब से प्लान कर लो कि आप कैसे खत्म करोगे अक्टूबर तक। और टारगेट अक्टूबर का रखो, बट आई फील लाइक वैसे तो अगर आपके 8 सब्जेक्ट भी हो जाए अक्टूबर तक तो भी ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट आप तब मॉक टेस्ट देना नवंबर से स्टार्ट कर पाओगे। 80% सिलेबस होने पे भी मॉक टेस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, और अलोंग साइड आप 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे। और टुवर्ड्स दी एंड क्या होता है ना, जब एग्जाम पास में और इतना प्रेशर होता है तो अपने आप ही वो एंड में तो कंसिस्टेंसी आ ही जाती है। जब एग्जाम में सिर्फ 1-2 महीना हो ना, तब आप ऑटोमेटिकली ज्यादा ज्यादा पढ़ने लगोगे। बट वो चीज आप अभी के लिए भूल जाओ, वो तो होता ही है। आप अक्टूबर तक सोच के चलोगे तब जाके नवंबर तक कंप्लीट होगा सिलेबस। तो अक्टूबर का ही स्ट्रिक्ट टारगेट रखो। और अभी इफ आपको लग रहा है कि स्पीड कम है या फिर नहीं लग रहा अक्टूबर तक हो पाएगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने स्टडी आवर्स थोड़ा और बढ़ा लो, या फिर स्लीप आवर्स में से थोड़ा सा कट कर लो, बिकॉज अभी एग्जाम में लेस देन अ ईयर है, तो अभी अपना 100% देना काफी इम्पोर्टेंट है। ओके। और अभी जैसे मेरा एक दो सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गए, और मैं हाँ। रेगुलर रिवीजन भी कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट हम्म। वाइज टेस्ट अभी दूँ या एंड में दूँ? वीकली क्विज़िस तो मैं दे रहा हूँ और टॉपिक हम्म। वाइज टेस्ट भी दे रहा हूँ, पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए क्या? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप एटलीस्ट आपके 5-6 सब्जेक्ट्स हो जाए उसके बाद स्टार्ट करने का सोच सकते हो, क्योंकि अभी आपके काफी मतलब बचे हुए हैं। देखा जाए तो सीओए भी काफी लेंदी है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस भी बड़ा है, बट एटलीस्ट डीबीएमएस मुझे थोड़ा इजी लगता था, थोड़ा फन सब्जेक्ट। उसके बाद टीओसी भी है, कंपाइलर डिजाइन भी है, तो भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स रिमेनिंग है। आप इनमें से पहले 4 या 5 कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का सोचना फिर देने का। ओके, थैंक यू थैंक यू। या अभी आप सिर्फ सब्जेक्ट लेक्चर कंप्लीट करने पे ट्राई करो, और उसके साथ में पीवाईक्यूज, और आप एक साथ में 2 सब्जेक्ट्स करने का भी ट्राई कर सकते हो। लाइक एक थोड़ा सा टफ ले लो जो आपको थोड़ा हार्ड लगता है, और एक थोड़ा इजी ले लो, क्योंकि फिर एक साथ 2 कंप्लीट होंगे। आई वुड सजेस्ट, क्योंकि अभी कोर सब्जेक्ट्स में से मोस्टली ऑलमोस्ट मतलब रिमेनिंग है सारे। 80% सिलेबस तो अभी बच रहा है इसलिए। मैं वही कर रहा हूँ, अभी दिन में दो सब्जेक्ट ही ले रहा हूँ। हाँ, राइट। तो वो डेली 2 ना भी, मतलब हाँ, बेसिकली 2 एक साथ लेके चलो ताकि आपके 2 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साथ में खत्म हो। फिर नेक्स्ट 2 पिक कर सकते हो। सो या गुड। ओके, थैंक यू। ओके। हाय क्रिश, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। एक सेकेंड। हाँ। हेलो। मैं ऑडिबल हूँ? यस। मैम, मैंने आपका पिछला सेशन अटेंड किया था, तो मैंने आपको याद होगा बताया था कि टीओसी वगैरह आप पढ़ रहा हूँ, और आपने जैसे हाँ। एनोटेटेड नोट्स यूज़ करके वैसे पढ़ रहा हूँ। तो वो तो बढ़िया चल रहा है अभी, जैसे उसके वजह से मतलब मैं 10 से 15 लेक्चर एक दिन में कंप्लीट कर लेता हूँ, तो स्पीड तो बहुत ओके। अच्छी आ रही है। हम्म। बट हाँ, अब मुझे ना प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आना था कि जैसे मेरे साथ ये हो रहा है कि अभी तक तो जैसे मैं नोट्स बना के पढ़ता था, तो हम्म। जैसे अभी क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करता हूँ करने का, तो जैसे ऐसा बाबा ना एक मन में ऐसा आता है कि अब की बार नोट्स नहीं बनाए। और मतलब जैसे एक सब्जेक्ट मेरा मेरा हो गया, जैसे सी प्रोग्रामिंग मैंने 1 जून को ही हम्म। शुरू किया था। तो हम्म। जैसे क्वेश्चन कभी कभी नहीं बनता ना, तो मैं बार बार जैसे जो तरीका है नोट्स ना बनाने का, मैं उस पे ही डाउट करने लग जा रहा हूँ। मतलब अगर आपके साथ अगर कुछ ऐसा सिमिलर हुआ था, तो आपने मतलब कैसे फेस किया था, ये जानना था मुझे, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग आफ्टर रिवीजन। हाँ। सी पहले तो इफ आपने जस्ट स्टार्ट किया है तो अभी पहले ठीक है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जा सकते हो, क्योंकि आइडियली पहले तो 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो उसके बाद ही आप क्वेश्चंस करोगे, राइट? क्योंकि पीवाईक्यू सब्जेक्ट के साथ में करने का कोई पॉइंट नहीं है। जब आप एक सब्जेक्ट पूरा 100% कंप्लीट कर रहे हो उसके बाद ही वो सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज शुरू करना, तो साथ में मत करना। नाउ अब नाम सी कर पहले। लिया है मैंने। हाँ। हाँ, राइट। तो हाँ, तो उसके बाद पहली कर चीज। रहा हूँ। हाँ, तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि अगर हम नोट्स नहीं बना रहे होते तो इनिशियली ऐसा लगता है, राइट, कि मतलब स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि, और एक तो 2 चीजें हैं। पहली बात तो नोट्स बनाने में भी ऐसा लगता है कि सारी चीजें लिखनी है, कुछ मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि यहीं से रिवाइज करना है, तो एक चीज वो है। दूसरी की जब हम मतलब स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ नोट्स नहीं बना रहे तो रिविजन इस
से कैसे होगा। बट उसके लिए यू कैन थिंक कि जो आप एनोटेटेड नोट्स हैं, जो आप रेफर करोगे उसमें सारी चीजें कंप्लीट है, तो अगर आपसे नोट्स में कुछ मिस हो भी रहा हो तो वो उन नोट्स में नहीं होगा, राइट। और उसमें अगर आप लेक्चर्स देखने के जस्ट बाद ही अगर वो नोट्स की पीडीएफ देख लो, तो जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, पहली चीज तो ये हो गई कि नोट्स और एनोटेटेड नोट्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है, उल्टा आपका टाइम ही बचेगा। अगर आप थर्ड ईयर में होते तो मैं फिर भी सजेस्ट कर सकती थी कि ठीक है, अगर लग रहा है तो कोर सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लो। नाउ अदर थिंग इज कि सी प्लस प्लस के तो मतलब सी प्रोग्रामिंग और डीएसए के तो नोट्स बनाने की वैसे भी जरूरत नहीं होती। लाइक इवन इफ आप प्रिपेयर भी कर रहे हो तो आई वुड से कि सी और डीएसए ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मुझे नहीं लगता नोट्स में बनाने की थोड़ी भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो भी प्रोग्राम आ रहा है, हर प्रोग्राम डिफरेंट होता है। और लाइक बेसिकली प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आप जितने भी करोगे, अब स्टैक, लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, फिर नॉर्मल सी प्रोग्राम हो गया, तो ये आप क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको समझ आएगा। इसमें आप नोट्स बनाने का या फिर प्रोग्राम लिख के इस प्रोग्राम ये लूप सपोज कितने टाइम रन हो रहा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये सब नोट्स बनाने से अच्छा कि आप लॉजिक पे फोकस करो। बस ये है कि आपके पास ये सारे क्वेश्चंस एक जगह होने चाहिए ताकि आप जब रिवाइज कर रहे हो तो आप इन्हें देख पाओ। तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार को टॉपर नोट्स में भी आई कैन से कि समझ नहीं आते। लाइक पर्सनली मुझे किसी और के नोट्स नहीं समझ आते, बट एनोटेटेड नोट्स है, आप उन्हीं लेक्चर स्लाइड से पढ़ रहे हो, तो वो नोट से बेटर तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। ना अनदर थिंग जो मैं बोलूँगी कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो उस टाइम पे हर क्वेश्चन के लिए आपको पीडीएफ खोलनी पड़े ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ उसका ऑनलाइन जाके सॉल्यूशन देख लो, गेट ओवरफ्लो पे या फिर एआई किसी भी चैटबॉट पे सर्च करके या कैसे भी सर्च करके बस उसका सॉल्यूशन देखो। आपको नोट्स पे जाने की तभी ज़रूरत है कि अगर आपको वो सॉल्यूशन भी समझ नहीं आ रहा है या फिर वो क्वेश्चन आपको पूरा हवा में जा रहा है कि ये क्या पूछा है या फिर ये टॉपिक मुझे याद ही नहीं है, ये कैसे होता है, यू नो तो उस केस में आपको नोट्स देखने हैं। और उस केस में भी आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगर ऐसी आपकी सिचुएशन है दैट यू फील लाइक कि पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए मुझे नोट्स देखने की ज़रूरत पड़ी है, तो पहले आप वो पूरे सब्जेक्ट के एनोटेटेड नोट्स पूरा रिवाइज कर लो, उसके बाद फिर पीवाईक्यू पे आना। या फिर अगर आप टॉपिक वाइज कर रहे हो, तो आप या तो पहले डेटा स्ट्रक्चर्स जो है सिर्फ वो रिवाइज करके फिर डेटा स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन सॉल्व करो, देन एल्गो रिवाइज करके उसका क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे कर सकते हो, बट डोंट मेक दिस हैबिट कि आप हर क्वेश्चन के लिए पीडीएफ खोल रहे हो। वो आपको नहीं करना। वो पीडीएफ सिर्फ एक या और मतलब 2 या 3 बार रिवीजन के लिए आपको रेफर करनी है। बिकॉज़ आई रिमेंबर मेरे जो हैंड रिटन नोट्स भी हैं उनको भी मैंने उतनी बार ही रिवाइज किया होगा जितनी बार मैंने एनोटेटेड नोट्स किया है। ओके, सो नोट्स की वजह से आपको नहीं आएगी प्रॉब्लम। अभी आपको लग रहा है अभी एज एंड व्हेन आप आगे के लेक्चर्स और सब्जेक्ट्स कंप्लीट करोगे, फिर उनके पीवाईक्यू करोगे, देन आपके पास ऐसे नोट्स और ये सब सोचने का भी टाइम नहीं होगा। ओके क्रिश। ओके मैम। यस मैम। हाँ, हाँ, तो अगर अगेन टू समराइज, अगर सी का आपसे सी आप कर रहे हो और पीवाईक्यूज, आई ऑल्सो रिमेम्बर सी प्रोग्रामिंग मुझे लगा था ये तो कितनी इजी होगी, बट स्टिल पीवाईक्यूज में मुझे बहुत सारे के लिए सोल्यूशन देखना पड़ा था। तो दैट इज फाइन, आप सोल्यूशन देख लो, बट जो नोट्स है वो सिर्फ आप एक 2 बार ही रिवाइज करो। बीच बीच में आपको नोट्स खोलने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो कोई ऐसे सीओए जैसा सब्जेक्ट हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है, देन आप फिर वो टॉपिक रिवाइज करके फिर पीवाईक्यू करने आ सकते हो। बट सी और डीएस में तो वैसे भी नोट्स का कोई काम नहीं होता, वो प्योर लॉजिक है। आप जितने क्वेश्चंस करोगे वो आपको अपने आप बिल्ड होगा फिर कैपेबिलिटी। ओके मैम, फिर क्वेश्चन ही करता हूँ, पीवाईक्यूज फॉर रिवीजन वही स्ट्रेटजी सेम यूज कर रहा हूँ। ठीक है यस यस, हाँ, नोट्स की आप अभी फोर्थ ईयर में हो ना? मैम। नहीं, अभी तो थर्ड ईयर में आऊंगा मैं। अच्छा, थर्ड ईयर में आओगे, तो अगर आपको हाँ लग रहा है ना तो आई आई वुड से कि अगर आपको कुछ सब्जेक्ट टफ लगते हैं, जैसे अगर अभी आई डोंट नो कि सीओए और इन सब ओएस वगैरह की कितनी पीडीएफ है, बट ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं लाइक इवन फॉर टीओ, मतलब ऐसे जो कोर वाले हैं ना जो बहुत लेंदी हैं, उनका आप बनाना चाहो तो स्टिल सोच सकते हो अगर मैम, मैंने कॉम। सोचा था हाँ, बट टीओसी वगैरह बहुत ही लंबा है, उनके तो पांच एग्जैक्टली। पांच मॉड्यूल भी हैं। और एक एक हाँ, क्लास 200 स्लाइड का है, अगर मैं लिखने गया तब तो सिलेबस ही नहीं हो पाएगा।
राइट, क्योंकि वो लगता है कि मतलब स्लाइड्स इतनी सारी है, बट फिर नोट्स भी तो बनाओगे तो उतने ही सारे हैं, तो इट डजेंट रियली मैटर। आप नोट्स, एनोटेटेड नोट्स ही रेफर करो। बस ये प्लीज मेक श्योर करना कि आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इंस्टेंटली उसका स्लाइड उसी टाइम देख लो, क्योंकि फिर वो नहीं करोगे तो वो आपको 200 स्लाइड बहुत मेसी लगेंगी, बट उसी टाइम देख लो तो वो बेस्ट है। तब फिर बिल्कुल मेसी नहीं लगेगा। ओके। यस मैम। ठीक है। मैम मेरा हेलो। हो गया, थैंक यू। हाँ ठीक है। हाय हिमांशु। हाय मैम। मैम मेरा इशू था कि एक्चुअली मैं डीए के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ओके। लेक्चर लीनियर अलजेब्रा मैंने पहला सब्जेक्ट कंप्लीट किया, पर अभी आई ओके। एम स्टार्टेड विद प्रोबेबिलिटी और ये और लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस तो नहीं लगाया मैंने, पर लगाने से वो डर लगता है कि कहीं इतना सारा लेक्चर्स देखने के बाद क्वेश्चंस नहीं बन पाए तो वो पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो बस क्वेश्चंस लगाने से ही डर लगता है। आई हैव नॉट स्टार्टेड सॉल्विंग एनी ऑफ द क्वेश्चन। ओके। सी, तो लीनियर अलजेब्रा में तो सर ने खुद ही इतने लाइक क्वेश्चंस के थ्रू ही कराया है। लाइक मैथ्स है तो ऑफ कोर्स यू नो उसमें ऐसा बिना क्वेश्चंस के तो ऐसे कोई थ्योरी है नहीं एज सच। तो ऑलरेडी सर ने काफी अच्छे, लाइक वी हैव सीन सर ने कितनी मतलब टॉप यूनिवर्सिटी से क्वेश्चंस करा रखे हैं, राइट? तो इवन सर जी ने आई गेस थ्योरी पे भी बहुत फोकस किया है कि क्वेश्चन सॉल्विंग तो एक चीज है, बट हम लाइक वो चीज पे पहुंचे कैसे, दैट लाइक द एंटायर बैक एंड ऑफ द सब्जेक्ट Sachin sir has explained really well. So, for example, right now I'm doing machine learning. तो machine learning I had done in college also, जिसमें कि पूरा ऐसे coding based था कि I see कि अच्छा linear regression, logistic regression, then सबके functions और code कैसे होता है वो बता दिया। जी बट नाउ जब मैं लेक्चर देख रही हूँ ना, तो सर ने मतलब पूरा कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है, दैट हाउ वी रीच कि हम लीनियर अलजेब्रा में ये फंक्शन यूज कर रहे हैं, ये लॉस फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो इवन अब लाइक नाउ दैट आई स्टार्टेड मशीन लर्निंग, एक्चुअली लाइक माय फीडबैक वुड बी कि मशीन लर्निंग थोड़ा सा ज्यादा मतलब हैवी सब्जेक्ट है, तो अब मुझे लीनियर अलजेब्रा बहुत इजी लगता है, एंड जी प्रोबेबिलिटी टू ऑल्सो, बिकॉज अभी मैं मशीन लर्निंग कर रही हूँ। तो सर ने जैसे पढ़ा रखा है ना, मतलब वैसा वैसी क्वालिटी कहीं पर भी नहीं है। चाहे आप कोई भी टॉप बुक पढ़ लो या जो भी पढ़ लो, तो दोज लेक्चर्स आर रियली गुड। तो अगर आपको वो लेक्चर समझ में आए हैं और वो लेक्चर के बीच वाले क्वेश्चंस यू हैव डन, then you are doing good. And I'll tell you, if you solve any like topic wise test या फिर PYQ or any question you're doing, even if you understand the entire theory properly, तो questions ऐसा होता ही है। Even like a person that who has got top rank in DA, when even जब वो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे पहले, देन ऐसा ही होता है। लाइक दैट्स दी ओनली वे, क्योंकि अगर आपको थ्योरी से ही हो जाती चीजें तो फिर इतने क्वेश्चंस होते ही क्यों? डीपीपी क्विज, ये जितनी भी चीजें है ना, दे आर नॉट टू टेस्ट योर नॉलेज। आप अगर कोई वीकली क्विज या डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, तो डोंट थिंक कि आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। दैट इज ओनली फॉर यू टू इम्प्रूव योर नॉलेज एंड एड टू योर लर्निंग। इट्स नॉट टू टेस्ट योर लर्निंग रियली। तो द एंटायर राइट पॉइंट ऑफ दीज क्वेश्चंस जो आप यहाँ से सॉल्व कर रहे हो, इट इज दैट कि वो क्वेश्चंस हो ऐसे ट्रिकी कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी थोड़ा आगे हो, सो दैट आप उनसे सीखो ढंग से। तो आई वुड नॉट से कि बी कॉन्फिडेंट आपसे सब क्वेश्चन अभी बन जाएंगे, बट इफ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ना, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि गेट में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आई वुड से पहले तो यू ट्राई विद पीवाईक्यूज। एंड यस मैम। पीवाईक्यूज का भी पीवाईक्यूज ये है कि हाँ, पीवाईक्यूज आपसे मोस्टली बन जाने चाहिए, बट पीवाईक्यूज भी ऐसा नहीं है कि 100% हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस आप कर रहे हो। इवन आपसे अगर 60 या 65-70% क्वेश्चंस भी हो रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के पीवाईक्यूज, राइट? तो वो भी बहुत अच्छा है, दैट मीन्स आपको लीनियर अलजेब्रा अच्छे से आता है। तो जो बचा हुआ 30% पीवाईक्यूज है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, उनका आप सोल्यूशन देख लो कि कैसे अप्रोच करना था। तो उसमें फिर यू फिगर आउट कि क्या ये आपको पता ही नहीं था या आप भूल गए थे या फिर ये आपको क्लिक नहीं हुआ। तो ईदर ऑफ द केस यू यू कैन फिक्स इट। अगर आप भूल गए थे, देन यू रिवाइज इट कि क्या मेथड था ये करने का या फिर ये टॉपिक क्या था। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक इन दैट डायरेक्शन, देन द ओनली वे इज कि यू कीप गोइंग। आप ऐसे न्यू क्वेश्चंस करते रहो, सोल्यूशन देखते रहो, देन ऑटोमेटिकली वो बिल्ड होगा आपके अंदर। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि एक वीक में या फिर 1 month, 2 month, you will be able to solve everything. It will take time, and eventually, if you are giving that time, if you are taking out time to solve questions and look at the solution, then in GATE you will be able to solve in your exam hours. So
yeah, you won't be able to solve every question, but just don't get demotivated by that. Okay, those are only for you to learn कि आप कुछ नया सीखो, right? Yes, got it, ma'am. And Right. last thing I wanted to ask is, मैम ये कंसिस्टेंसी तो नहीं हो पाता, कुछ दिन बहुत अच्छे जाते हैं और लाइक 2-3 डेज बहुत अच्छा पड़ा तो आप 1-2 दिन नहीं, ऑलमोस्ट एक हफ्ता ऐसा वेस्ट हो जाता है। एंड आई फाइंड कि मैं बहुत हुक्ड हूँ ऐसे फोन पे, लैपटॉप पे, तो शॉर्ट्स Yeah. पे वगैरह। Right. So the only reason that the consistency gets break is because of these things only, the phone, social media and everything. There is no absolute reason for it apart from this, right? So firstly, though, it should be opposite. Of course, you are not, that energetic कि आप same high flow आप बिल्कुल पूरे एक month तक बना के रख पाओ. But usually how it goes is कि आप at least एक 4 to 5 days आप ऐसे 12 घंटे पढ़ रहे हो एंड देन 1 to 1-2 दिन उसके बाद आपने थोड़ा स्लो कर लिया और still 7 hours a day तो 8 hours a day तो minimum ही है 7-8 if you are preparing like if you have the whole day to yourself तो जी इतना especially if आपका अगर आप fourth year student हो या फिर with job या फिर with job prepare कर रहे हो and this is your full and final attempt then तो you should just you have to give time and I would say कि इसका सबका एक reason होता है I think even in last mentorship session towards the end I had explained कि how I was able to maintain consistency and my again I would repeat my reason was that I was preparing for JE advance or I will tell you like even after job I had given multiple interviews for job but अगर job के interviews अच्छे नहीं गए या फिर जितनी भी rejection emails आ रही है so they also feel bad but you have something to blame I would say you can think जी कि like अगर मेरा interview अच्छा गया मैंने more or less सारे questions के answer किए तो I can maybe think कि ठीक है maybe interviewer did not want या उसका ऐसे मूड पे डिपेंड करता है या फिर क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं दे पाई देन आल्सो आई कैन थिंक दैट ही वाज asking questions that are जी not much relevant to JD but like from experience because I had experienced when an exam goes bad you have no one to blame but yourself so that was what happened with me in JE advance and my entire college was good like my placement was also decent only like हम्म, okay तो था because I was at home so up उस जी हिसाब से it was nice but still I remembered that I never stopped thinking what could have been different if my JE advanced result outcome was different. So for me, यस I remember that day, and after that, I didn't have to think twice about it. Ki why I need to maintain consistency. Like I was really scared of that day, so I just thought that if I open the result day, so it will feel really bad. अगर आपने prepare किया है और आपके marks नहीं आ रहे हैं ना, तो it will feel really bad when everyone else is posting about it, and it is not worth it. एट ऑल तो अभी का ये जो भी आप फोन नहीं देख रहे हो सैक्रिफाइस कर रहे हो यू हैव टू कट आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक आई डिडंट हैंग आउट विथ माय कलीग्स एट ऑल जो ऑलमोस्ट हर दिन ही बाहर जा रहे होते हैं जी जी so I was sort of cornered also. So there are a lot of things, but you really have to prepare in isolation only. I would say, अगर आपके friends हैं जो gate की preparation कर रहे हैं, then you can stay in touch with them. But apart from that, you pretty much have to study the entire day. Now I can't say like anything to you to get consistency. That's up to you only. I can only tell कि every day you are watching phone, even if it is for 20 minutes, you are doing wrong to your future self. Anybody like everyone who has joined here even me currently also right because till the time we don't achieve what we want to then these things are just distraction and time waste it will not give you a single benefit तो मतलब 10 मिनट भी देना वेस्ट किया है तो आई ऑलवेज से कि ये भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप कम करने का ट्राई करो पहले आधा घंटा करो आप मतलब सीधा दे जस्ट वन थिंग डिसाइड योरसेल्फ कि आपको ऐसे अभी टाइम पास करना है या फिर यू वांट टू डू वेल इन योर एग्जाम एंड इफ यू हैव टू डू वेल इन योर एग्जाम देन द ओनली वे इज कि आप फोन हटा ही दो लाइक फ्रॉम नाउ ओनली जस्ट स्टॉप यूजिंग इट श्योर श्योर हाँ मैम या राइट स्विच ऑफ करके रख दो एंड इफ यू फील कि लेक्चर्स देखते हुए यू आर फीलिंग like your focus is gone or something then just go for a walk spend time with yourself listen to music all that is okay but don't spend time on shorts and these things they are very very draining and yeah you won't you even be able to memorize things that you're studying and आप में solve question solve करने की भी capability नहीं आएगी so just let it be. यस Get rid of श्योर the phone. श्योर And थैंक again, यस as मैम
फिर आपका दिस इज आई वुड से नॉट एट ऑल अ गुड थिंग कि आप एक दो दिन पढ़ के लाइक इफ यू आर टेकिंग इट्स गुड दैट you were honest, right? Because but Yes, ma'am. now we have to work on it. And yes, in some mentorship session I would like to hear that now you are not watching phone at all. Okay? Sure, ma'am. I'll get back to you. Sure. Yes, yes. Thank you, ma'am. Okay. Hello. Yes, hi Rajkumar. Yeah. Yeah, can I? Yes, yes. सो एक्चुअली मैंने जॉब कर रहा था, तो अभी Okay. मतलब 2025 में मैंने ड्रॉप लिया हूँ। और Okay. अभी मई तक मैं सीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो बहुत सारा Hmm. सब्जेक्ट्स भी मैंने किया हूँ। पर अभी जून में मैं डीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा रीजंस है। मैं जो कॉलेज को टारगेट कर रहा था, जो स्ट्रीम को, उन्होंने इस साल ही डीए में से ले रहा है, मतलब स्टूडेंट्स फॉर द Okay. कोर्स। सो हाँ. बेसिकली माय क्वेश्चन इज, मैंने डीए से कंप्लीट किया है सीएस का सिलेबस से। अभी Hmm. जो डीए में सिलेबस है डीएसए का, उसमें मैं देख हाँ. रहा हूँ ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक्स है। तो आपका Hmm. सजेशन क्या रहेगा कि मैं फिर से वो लेक्चर्स कंप्लीट करूँ वो क्लासेस से, या मतलब मैं जो प्रीवियस किया था दूसरे प्लेटफॉर्म से एक्चुअली Hmm. उसका नोट्स रिविजन्स कर लूँ, वही सफिशिएंट रहेगा? आप अगेन कौन सा वाला गेट दे रहे हो? डीए, डेटा साइंस। डीए का दे रहे हो, राइट? एंड यू आर श्योर ना कि डीए का ही देना है? यस यस यस। हाँ, तो फॉर विच प्रोग्रामिंग आई थिंक डीए में पाइथन होती है, राइट? हाँ, पाइथन होता है, पर मैं हाँ. डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की बात करूँ, मतलब वो दोनों मैंने ओके. किया है सीएस से, सीएस हम्म. का सिलेबस फॉलो करके दूसरे प्लेटफॉर्म से एक्चुअली प्रीवियस। ओके, राइट। तो इस सब्जेक्ट के लिए तो अगेन इसमें कुछ ऐसे नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ऐसे लॉजिकल सब्जेक्ट्स ही होते हैं, तो आप आई थिंक डायरेक्टली पीवाईक्यूज पे जाओ। अगर आपसे 60% आधे से थोड़े ज़्यादा पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर पा रहे हो, देन दैट मीन्स कि आपको इसका नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और आप बस उसका सॉल्यूशन देखो, अगर आपको समझ आ रहा है तो फिर आप ऐसे करके पीवाईक्यूज कवर करो। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आप उसके लेक्चर से स्टार्ट करो। डीएसए के लिए आपको देखने की जरूरत नहीं है लेक्चर्स, क्योंकि डीएसए इट्स लाइक इसमें इतना कोई बहुत कुछ एल्गोज है जो मैंने देखा था कि यू नो इधर सचिन सर ने ऐसे थोड़ा इन डेप्थ एक्सप्लेन किया था, बट वो बहुत ऐसे थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं, ठीक है? इसमें मोस्टली जो है वो पूरा लॉजिक बेस्ड ही है। तो आपको इस इन सब्जेक्ट्स के लिए लाइक प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गो के लिए लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, जो ठीक है? पहले वाला है अनलेस उसका ही नोट्स रिविजन कर लो और पीआई को फॉलो कर यस, लो। यस, यस, यस। थैंक यू। अगर उसके बाद भी आपसे पीवाईक्यू नहीं हो रहे सिर्फ तभी नोट्स देखना। इवन अभी आपको जो भी वीक अगर कोई टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है इस पे बेस्ड, अगर आप वो कर रहे हो और उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो भी आपको इनफैक्ट इसके लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सोल्यूशन देख के समझ आ जा रहा है, दैट मीन्स कि आपको कुछ और लेक्चर की जरूरत नहीं है। ओके? ओके, थैंक यू। ऑल राइट, वेलकम। हेलो ओके। मैम। यस, यस हनीश, हाय। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ। मैम एक्चुअली मैंने गेट के लिए पहले थोड़ा प्रिपेयर किया था, मतलब सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ रहा था मैं, हम्म। डीबीएमएस और ओएस वगैरह। हाँ। बट मैम क्या हुआ ना कि अभी मेरा फाइनल ईयर है, तो मैम मैंने थर्ड ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े थे, फिर देन मेरा वो कॉलेज की प्लेसमेंट्स वगैरह का मैम ड्राइव वगैरह स्टार्ट हो गई हम्म। कि मैम कैंपस में लाइक हमारे क्या क्लासेस चलती है मैम, मतलब ट्रेनिंग वगैरह काइंड ऑफ होता है 6 मंथ्स का। तो ओके। मैम वो स्टार्ट हुआ तो जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने मतलब डीएसए वगैरह काइंड ऑफ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लीड कोड वगैरह करना। तो मैम ओके। क्या हुआ ना कि फिर मैं कंफ्यूज होता चला गया मैम। राइट नाउ अभी मैं इतना हम्म। कंफ्यूज हूँ कि लाइक मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे अभी प्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए पूरा या फिर गेट करना चाहिए, बिकॉज मैम 6 मंथ्स है और कंपनी जी मैम अभी फाइनल ईयर है, तो मेरा मैम मतलब दिसंबर तक ही अच्छी कंपनी जाती है मोस्टली, मतलब नवंबर मिड तक है, हाँ। एंड तक। हम्म। तो मैम अभी कैसे करना चाहिए लाइक, और मैम मैंने लाइक मेरा सब्जेक्ट जो मैंने पहले पढ़े थे उसमें से जैसे डीबीएमएस, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सी हम्म। लैंग्वेज, हाफ ऑफ सीएन था कुछ, एंड हम्म। मैम एक और था डीएसए का, जैसे मान लो कि मैम लिंक लिस्ट का हो गया, और सॉरी एरे हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, लाइक जिसमें होता है ना मैम कि ऐड इंसर्ट, ये राइट। सब मतलब हम्म। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है काइंड ऑफ। हम्म। और मैम एल्गोरिथम नहीं पढ़ा, जैसे रेड ब्लैक ट्री हो गया, ये सब नहीं पढ़ा मैम, मतलब बेसिक आता है मेरे को, ऐसा है। हाँ, आई उसका गेस मतलब ऐसे पीवाईक्यूज नहीं किया रेड मतलब। ब्लैक आरबीटी इन सब पे ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते भी नहीं है ऐसे, वो तो अच्छा एनीवेज। मैम।
हम्म। हम काइंड ऑफ डीएसए में थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, मेरे को आइडिया नहीं है गेट का, तो इसमें लाइक एल्गोरिथम में कैसे आता है क्वेश्चंस। जी, तो सी और डीएसए आई वुड से कि बहुत ही बेसिक लेवल आता है, स्पेशली डेटा स्ट्रक्चर्स। लाइक अगर आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक मैंने करी थी, तो मुझे डीएसए तो लाइक सी और डीएस के लिए मैंने कोई लेक्चर भी नहीं देखे थे, बिकॉज डीएसए बहुत ही आपको ठीक लगेगा अगर आपने लीड कोड मीडियम अगर आप सॉल्व करते हो और ऐसे प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रेप है, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे, एल्गो भी और सी भी, प्रोग्रामिंग, राइट? तो अगेन यस। नाउ दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। लाइक लास्ट ईयर जब मेरी इनफैक्ट प्लेसमेंट लग भी गई थी, तो उसके बाद आई हैड तो बट मेरा प्रोफाइल नेटवर्क इंजीनियर का था, ऐसे डेटा साइंटिस्ट या ऐसा नहीं था, एसडी रिलेटेड नहीं था। तो आई ऑल्सो हैड दिस क्वेश्चन, क्योंकि सी नन ऑफ द पाथ्स आर रॉन्ग और राइट। एक तरीका ये है कि राइट। आप अभी प्लेसमेंट की तैयारी करो, इवन इफ आपका कोई मतलब बहुत अच्छी कंपनी में नहीं होता है ना, या फिर कोई एवरेज सी कंपनी में भी होता है, पैकेज भी आपका इतना अच्छा नहीं होता, तो भी अगेन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसके बाद काफी एफर्ट डाल के वहां से फिर टॉप कंपनीज में चले जाते हैं, एमएनसीज, जो टॉप एमएनसीज है, राइट? और उनका पैकेज भी बहुत अच्छा होता है फिर, ऐसे 40 50, लाइक देयर इज नो लिमिट, राइट? आप कितना या भी अच्छा कर सकते हो। इट्स नॉट कि आपने गेट नहीं दिया तो फिर तो कुछ नहीं होगा, और आपको गेट की तैयारी करनी है। एंड अगेन आप गेट अगर लेते हो देन दैट्स ऑल्सो कम्प्लीटली डिफरेंट रूटीन। एक तो पीएसयू का ऑप्शन है, बट ठीक है, इफ यू डोंट हैव टू गो फॉर पीएसयूज, देन एमटेक से भी देयर आर रियली गुड ऑप्शंस। प्लस एक चीज जो आप दूसरा पर्सपेक्टिव ये देख सकते हो, दैट यू लर्न अ लॉट व्हेन यू आर स्टडिंग, यू नो, दैट टू फ्रॉम टॉप टियर इंस्टीट्यूट। तो जॉब तो आपको लाइक लाइफ लॉन्ग करनी ही है, तो अगर आपको ये ऐसे 2 इयर्स तक आप एमटेक कर सकते हो, क्योंकि सारे लोग यू नो ऑलमोस्ट आई सीन दैट इफ यू आर इन अ सिचुएशन कि आप गेट की प्रिपरेशन कर पा रहे हो या फिर ड्रॉप लेके भी कर पा रहे हो, देन यू आर इन अ वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट सिचुएशन आई वुड से, बिकॉज आर मेनी राइट। पीपल जो नहीं अफोर्ड कर सकते 2 साल और एजुकेशन में देना, लाइक वो टाइम ही नहीं अफोर्ड कर सकते। तो नाउ यू हैव टू थिंक कि आपको क्या चूज करना है, बिकॉज पर्सनली आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री 1 साल से, एंड मेरे सारे फ्रेंड्स भी ऐसे ही हैं जो भी यू नो लाइक सीएस बैकग्राउंड से हूँ मैं। तो मेरे सारे फ्रेंड्स तो कोई भी गेट की प्रेप नहीं कर रहा था, ऑल ऑफ देम आर वर डूइंग जॉब ओनली। बट आई वुड से कि द सिचुएशन इज वेरी वेरी टफ इन द जॉब मार्केट ऑल्सो, अनलेस एंड अनटिल आप में बहुत एक्सेप्शनल स्किल्स है कि आपने बहुत सारी लाइक क्रेजी हैकाथॉन्स कर रखी हैं या फिर ऐसा कर रखा है, तो अ वेरी ऑनेस्ट रियलिटी चेक दैट इट विल बी वेरी वेरी टफ फॉर यू। लाइक आई थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ लक along with exceptional coding skills टू गेट इनटू टॉप एमएनसीज, ठीक है? तो वो भी इट्स नॉट इजी, एंड पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से गेट फील्स मच मोर इजियर, क्योंकि एटलीस्ट मुझे पता है कि गेट में कभी भी ऐसा आउट ऑफ द सिलेबस बहुत क्वेश्चन नहीं आता। आपके पास इतना अच्छा रिसोर्स है, आप यहाँ से पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली और यू नो टेस्ट दे रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, देन आपकी रैंक आ जाएगी, ठीक है? बट इन यस टर्म्स ऑफ मैम। गेटिंग अ टॉप प्लेसमेंट दैट इज वेरी टफ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी लीड कोड बहुत ज्यादा लीड कोड ग्राइंड करा था, मैंने प्रोजेक्ट्स भी अच्छे बनाने की कोशिश करी थी, बट आफ्टर एवरीथिंग आई कुड नॉट गेट अ गुड जॉब, बिकॉज अगेन दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि कॉलेज यस ऑल्सो मैम। मैटर्स समवेयर। लाइक अगर मैं देखूँ तो मेरे कॉलेज से भी देर आर पीपल हु वेंट इन Uber, Amazon and really good companies, but that ratio is very less, like 3 or 4 people went out of 180। बट अगर मैं अपने दूसरे स्कूल फ्रेंड्स का कंपेयर करूँ जो मेरे साथ जेई की प्रेप कर रहे थे एंड दे गॉट यस इनटू मैम। बिट्स एंड आईआईटीज, उनके में एक भी ऐसा नहीं है जिसकी अच्छी जॉब ना लगी हो। लाइक उनके पैकेजेस बिल्कुल क्रेजी है, एंड दे डिड नॉट इवन हैव टू रियली यू नो सफर दैट मच। उनका कॉलेज क्या सेवन राइट मैम। सेमेस्टर में सबका लग गया था, दे वर ऑलरेडी डूइंग इंटर्नशिप एंड गॉट पीपीओ, every one of them, so that ratio is higher there। तो again जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग था, it was that कि it gets you a better platform, like आप जितना अभी से एफर्ट करके जहाँ तक पहुंचोगे, तो उससे आपको कई ज्यादा लाइक जितनी मेहनत आप अभी कर रहे हो उतनी इफ यू डू इट इन अ टॉप टियर इंस्टीट्यूट, देन इट गिव्स यू अ मच बेटर प्लेटफॉर्म। तो नाउ इट यस डिपेंड्स ऑन यू, दोनों ही पाथ देखो। गेट भी काइंड ऑफ टफ है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, देर आर लैक्स ऑफ पीपल हु आर प्रिपेयरिंग, बट जो सीट्स हैं वो आप मान लो 500 तक आपको रैंक लानी पड़ेगी, उससे नीचे इट्स नॉट रियली पॉसिबल टू, यस मतलब मैम, जाना है फिर आईआईटी जाना है, मतलब नीचे का जाने का मतलब ही नहीं है। होता नहीं है फिर, मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप बाकी सोचते हो तो ठीक है, लाइक
ऐसे वैसे बोलना हो तो ठीक है, दे आर गुड, बट पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस भी यही है कि इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी बीटेक होती है, देन दे गेट प्रेफरेंस और ऐसे बहुत चीजें हैं। तो एमटेक करने का फायदा तभी है अगर आप आईआईटी से कर रहे हो, वो भी अगर आप टॉप आईआईटी से कर रहे हो, राइट। अगर आप गेट का प्रिपेयर कर यस रहे हो, देन मैम। आप ये सोच के चलो कि आप आईआईसी या फिर टॉप आईआईटी जाओगे, क्योंकि ट्रू बेनिफिट आपको वहीं से मिलेगा गेट का। प्लस आप एमटेक यस मैम। 2 साल का है, उसमें यू विल लर्न सो मच, क्योंकि जो ये टॉप टीयर इंस्टीट्यूट्स होते हैं और टीयर 3 कॉलेजेस, यहाँ पे पढ़ने का तरीका, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो दैट्स अ होल न्यू एक्सपीरियंस, राइट। जॉब तो यू विल बी यस मैम। हैप्पी डूइंग आफ्टर दीज 2 years एनीवेज, ठीक है। एक बार वंस यू गेट इनटू द इंडस्ट्री, फिर ये कॉलेज और ये सब बाद में इतना मैटर भी नहीं करता, इट्स ऑन योर ओन स्किल्स। बट एक स्टार्टिंग पॉइंट में भी मेरे हिसाब से बेटर मिल जाता है, राइट। So the यस starting मैम। point is better. You learn a lot. आपकी knowledge wise भी you improve a lot. Tier 3 colleges में तो mostly there is nothing that college gives you. आप mostly सारा अपने अलग से ही कर रहे होते हो, right? So that's the difference. And job यस मैम। market is मैम, tough. हाँ, तो आप यस अगर मैम, सोच कंपनी रहे हो भी कि आ रही है ना मैम, लाइक हाँ सर्विस बेस्ड ही आ रही है मैम, मतलब अच्छी कंपनी है, टीसीएस आ रही है। और मैम जो हाँ, अच्छी आ रही है फिर वो लेके नहीं जाती मैम बच्चों को, मतलब हमारे सीनियर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मतलब वो right काफी right वेरी लेस पीपल लेके जाती है, 1 और 2 to 3 पीपल्स ओनली। राइट। एंड जैसे उसमें भी आई एचपी। टेल यू, मेरे कॉलेजेस से भी जो मतलब बहुत टॉप नोन नहीं, बट जो डिसेंट कंपनीज थी, दे डिड नॉट इवन गिव, लाइक मेरा प्लेसमेंट हुआ था एक में, तो मुझे उसमें जो उसकी लाइक आई नेवर गॉट इवन अ कॉल फ्रॉम दैट कंपनी। एंड मेरे साथ ऐसा हुआ था दैट दैट कंपनी हैड द हाईएस्ट लाइक ब्रैकेट टिल दैट टाइम, उससे ऊपर के पैकेज की कोई आई नहीं, तो मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया था, तो ऑन कैंपस में और किसी कंपनी में नहीं बैठ पाई थी, एंड वो कंपनी ने मुझे कॉल ही नहीं करा। अगस्त में ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था लास्ट ईयर, मतलब व्हेन आई वाज इन थर्ड यस ईयर और जस्ट गई थी। तो यू नेवर नो अबाउट सच कंपनीज की कौन लेगा कि नहीं। और एंड ऑफ कैंपस भी बहुत डिफिकल्ट होता है, लाइक आफ्टर 20 to 30 इंटरव्यूज आई वाज एबल टू गेट एन ऑफर, वो भी फिर नेटवर्क इंजीनियर के प्रोफाइल पे था। तो इफ इवन इफ यू चूज टू गो फॉर प्लेसमेंट साइड, दैट विल ऑल्सो बी वेरी हार्ड। तो आप गेट और प्लेसमेंट, अगर आपको थोड़ा सा भी आपके दिमाग में ये है कि मैं इतने सब्जेक्ट्स तो कर ही चुका हूँ गेट के, तो प्लेसमेंट और गेट दोनों कर यस लेती हूँ, मैम। तो ये तो आप भूल जाना, क्योंकि देन आप दोनों ही खराब कर रहे हो, क्योंकि एवरेज सा डीएसए करने से आपकी तो प्लेसमेंट भी नहीं लगेगी मैम अच्छी, फिर मे बी नॉर्मल लग जाए, बट फिर उसके बाद आप एक स्विच करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो साउंड करता है इजी कि हाँ इन्होंने टीसीएस से कर लिया, इन्होंने यहाँ से कर लिया, बट इन रियलिटी इट्स वेरी डिफिकल्ट, और सिर्फ उनका ही होता है जिनकी बहुत एक्सेप्शनल स्किल्स हो। तो आप सिर्फ काम चलाओ डीएसए, काम चलाओ प्रोजेक्ट्स और डीएसए करके एक वो वाला स्विच नहीं ले पाओगे। जॉब मार्केट इज एक्चुअली, इट यस डिमांड्स मैम। यू टू बी वेरी गुड। तो आई गेट इट कि आप ऐसा सोच रहे हो कि गेट के इतने सब्जेक्ट्स हो ही गए हैं, तो फिर बट आई वुड रेकमेंड एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली। हाँ, कि आप एक चीज डिसाइड कर लो, भले आप अभी एक हफ्ते और बाद अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करना, बट आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, और एक ही चीज पे फोकस होके करो फिर। यस मैम, ऐसे ही होता है कि लाइक जैसे अभी मैंने क्या प्लेसमेंट का हाँ स्टार्ट किया डीएसए वगैरह, तो पहले राइट, मैंने प्लानिंग करा कि मैं दोनों को मैनेज करके हाँ चलूंगा। बट मैम क्या होता है, जैसे अपन लीड कोड करने जाते हैं तो आपको तो पता ही आइडिया है मैम, हाँ क्वेश्चन को अपन सोल्व कर रहे हैं, तो मैम मेरा ऐसे पर्सनली मन नहीं करता कि मैं उसका ट्यूटोरियल देख लूँ जाके। पहले मैम राइट 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स में खुद से पुट इन करता हूँ, देता हूँ पूरा अच्छे से, राइट फिर उसको ड्राई राइट रन करते हैं, काफी टाइम लग जाता है। और मैम पूरा दिन तो राइट डीएसए में चला जाता है मैम, फिर ऐसा होता है, मतलब टाइम ही नहीं एग्जैक्टली मिलता फिर गेट के लिए। और मैम जिस दिन मैं गेट की करता हूँ स्टार्ट, सुबह मान लो कि मैंने गेट का स्टार्ट किया, और मैम फिर उस पूरे दिन फिर गेट ही हो पाता है, मतलब दोनों चीजें बैलेंस नहीं हो पा रहा मैम। और एग्जैक्टली मैम वही। सेकंड और थिंग ये भी है मैम, हाँ फिर गेट का फिर मैम छोड़ने का मन भी नहीं करता, बिकॉज मैम काफी मैंने पहले टाइम दिया था, मतलब काफी मैंने पूरे पूरे लेक्चर्स देखे हैं सर के पूरे कोर्स से, मतलब मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं राइट। सो गेट का। हाँ, तो आप एक बार सोच लो, क्योंकि आई वुड टेल यू, गेट भी सिर्फ टाइम दे रखा है वो भी नहीं, आपको जेन्युइन इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर आप सोचो कि आपको जो भी मैंने अभी मेंशन किया कि गेट से क्या क्या ऑप्शंस है, और आप और भी रिसर्च करो, इफ यू थिंक कि दैट्स अ यू नो गुड थिंग, आप आपको उसका बेनिफिट फील हो रहा है, तो ही प्रिपेयर करना, ठीक है। क्योंकि वो आपको अंदर से फील आनी चाहिए। उसके बाद डीएसए का भी आई वुड टेल यू, अगर आप कॉन्टेस्ट वगैरह में बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म कर रहे हो, आपसे चारों क्वेश्चन बन जा रहे हैं, या फिर चलो 3 हमेशा बन रहा है और कभी कभी चौथा भी बन रहा है, उस लेवल की कोडिंग आती है, तो आप फिर भी सोच सकते हो। बट आई विल टेल यू कि नॉर्मल सा डीएसए करके तो कुछ नहीं होगा, लाइक वेरी ऑनेस्टली इट्स नॉट इजी, इधर भी बहुत यस एफर्ट मैम। लगता है, राइट। सो या मैम तो मैम दोनों में आ जाता है कि जब मैं डीएसए करता हूँ तो डीएसए में भी इंटरेस्ट आता है मैम, और जैसे कोर सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ हाँ रहा हूँ तो इनमें भी आ जाता है मैम, बट मेरे को वो वाले सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते, जैसे टीओसी हो गया, कंपाइलर डिजाइन हो गया, ये सब। हाँ राइट, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं अच्छे लगते, डिपेंड्स। कुछ
में इंटरेस्ट आता है, कुछ में नहीं। बट चलो सब्जेक्ट्स तो एक चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप गेट क्यों दे रहे हो, राइट? तो आप अभी डिसाइड कर लो कि आपको प्लेसमेंट के लिए जाना है पूरा या फिर आपको गेट देना है, क्योंकि गेट इज ऑल्सो आई फील अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। इसके बाद जो ऑप्शंस होते हैं, लाइक नाउ दैट आई थिंक, तो भले ही अब 2 साल के लिए आई वुड बी स्टडिंग, बट जितना मैंने रिसर्च करी अबाउट IISc, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई विल बी एबल टू गेट दैट एनवायरमेंट। क्योंकि अभी मैंने कुछ IISc के सीनियर से कनेक्ट किया है, मैंने जितना एक्सप्लोर किया है, आई फील लाइक इस टाइप की लर्निंग से मैं जितना Yes, sir. सीखूंगी वो जॉब से तो ऑफ कोर्स ही नहीं सीख पाती, राइट? एंड जॉब तो एनीवेज यू विल डू लेटर। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिस्क, क्योंकि आप प्लेसमेंट अभी छोड़ रहे हो, बिकॉज इवन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वी सी कि अगर जितना रिटर्न हाई होता है उतना आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ऐसे स्कैरी सा रिस्क है भी नहीं, इट्स जस्ट वन डिसीजन यू हैव टू टेक। थोड़ा सा लगता है, लाइक मुझे भी स्टार्टिंग में लग रहा था दैट आई हैव टू लीव माय जॉब, फिर 2 साल बाद क्या होगा। बट जितना मैंने रिसर्च किया, आई फील लाइक आई एम डूइंग गुड कि मैं रिजाइन कर रही हूँ, एंड आई एम गोइंग फॉर इट। तो यस, यस मैम। यू हैव टू बट हम काफी एक्सप्लोर अ फिर बिट। ये डाउट आता है कि लाइक गेट तो मतलब साल में एक बार होता हाँ, है, तो क्या बता वो हाँ, अपना डे बन पाए नहीं बन पाए, वो भी तो ना उनकी पूरा पूरा साल अपन पढ़ रहे हैं हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बट मैम उस दिन अगर अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ तो बाई चांस फिर मैम ड्रॉप लेके करना तो बहुत हार्ड हो जाएगा, काइंड ऑफ। या सी, बट भाई उसके चांसेस तो मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर आप पूरे साल एफर्ट कर रहे हो, ठीक है, उस दिन बस अनलेस एंड अनटिल आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस लूज कर दो, वो अलग चीज है। इट्स जस्ट दैट यू डोंट हैव टू पैनिक। तो आप उस दिन जाओ और मतलब ना उसको डोंट थिंक कि एवरीथिंग इज एट स्टेक। तो लाइक अगर आप वर्स्ट केस सोचो भी तो ठीक है, मतलब नॉर्मल सी जॉब आपको मिल जाएगी जितनी अभी लग रही है ना। नॉर्मल सी जॉब मिलना इज नॉट दैट हार्ड, वो आपको कभी भी मिल ही जाएगी। अगर आप जॉब ढूंढने जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। तो एंड गेट का यस ये मैम। है that, हाँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग देन देर इज नो वे कि वो एग्जाम बहुत ही अलग चला जाएगा। क्योंकि अगर टफ है तो वो सबके लिए ही टफ है, राइट? इट्स नॉट दैट यस आपको मैम। 100 on 100 लाना है। एंड गेट बहुत इतना क्रेजी टफ नहीं बनाते हैं, लेकिन इतना तो होता ही है कि आप का स्टार्टिंग में एक मोमेंटम बिल्ड हो जाए, आप क्वेश्चंस कर लो और उसके बाद अगर आपने पढ़ाई की है देन आपसे वो ट्रिकी क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। तो यस मैम। यू नो हाँ, इतना यस मैम। सरप्राइजिंग एग्जाम नहीं होगा, एज लॉन्ग एज यू आर पेशेंट, ठीक है? मैम गट फीलिंग्स तो ये कहते हैं कि लाइक गेट का कर लेना चाहिए, बिकॉज थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है गेट की साइड। राइट, देन ऑफ कोर्स, बिकॉज हाँ, आई वुड ऑल्सो से लाइक मैंने खुद यही सोच के तैयारी की थी। क्योंकि डेफिनेटली मेरे लिए भी ऐसे क्योंकि मैं मेरी भी प्रोफाइल डिफरेंट थी। तो मैं 1 साल उसी प्रोफाइल, लाइक अगर आप 1-2 साल किसी एक प्रोफाइल पे काम कर लेते हो तो उससे भी स्विच करना डिफिकल्ट होता है। बट आई वॉज ऑल्सो श्योर कि मुझे गेट देना है, तो आई वेंट विद इट कि ठीक है। एंड मेरे यस पास दूसरे ऑप्शंस भी थे, बट जो इनफैक्ट एक डेटा साइंस रोल से ज़्यादा रिलेटेड था, लाइक उस टीम में था, बट मुझे पता था उस टीम में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने, और वो कंपनी भी बेटर थी, तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया बिकॉज आई वाज श्योर कि मुझे गेट देना है। लाइक मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया था कि मुझे कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है, ये चूज करते टाइम। तो मैंने इधर इसीलिए ज्वाइन किया कि मुझे गेट की प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। अच्छा मैम। तो मैम अभी या आप तो आईएससी ज्वाइन कर रहे हो क्या? हाँ। अच्छा। एंड मैम यस। मेरा वो थोड़ा ये बताओ ना कि लाइक जो मैंने सब्जेक्ट्स पहले पढ़ रखे थे, तो उनको मैम अभी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ याद नहीं है उनमें से, तो हम कैसे रिवाइज करना चाहिए? तो 4 to मतलब 5 to 6 सब्जेक्ट्स थे पहले पढ़े हुए, काफी टाइम हो अगर गया मुझे। देखो, सी और डीएस के लिए तो आपको कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्वेश्चंस कर यस मैम। सकते हो। उसके अलावा आप में भी कॉम्पैक्ट कोर्स है या फिर जो भी कोर्स है, आप सिर्फ लेक्चर को 2x स्पीड पे बस ऐसे, अगर लाइक इट डिपेंड्स अगेन, मैं जैसे मैं यूट्यूब से पढ़ रही थी तो मुझे कुछ रिवाइज करना है तो मैं उसको 3x स्पीड पे बस ऐसे सुन रही हूँ कि एक बार वापस से कान में चीजें चली जाए मेरे, कि कुछ मैं सब एक बार रिवाइज हो जाए, वैसे कर सकते हो। या फिर अगर आपने नोट्स बना रखे हो, आपने बना रखे हैं, राइट, यू सेड, तो आप पूरे नोट्स को रिवाइज करो, एक यस मैम। सब्जेक्ट लो कि पूरा नोट्स रिवाइज करो स्टार्टिंग टू एंड। उसके बाद आप लाइक आपने पूरा नोट्स रिवाइज कर लिया, उसके बाद यू गो टू द पीवाईक्यू। अगर 60% 65% पीवाईक्यूज आपसे बन रहे हैं वो रिविजन करने के बाद, तो बचे हुए जो भी क्वेश्चन है उसके आप सोल्यूशन देख लो, दैट्स ऑल्सो फाइन, ठीक है? राइट, क्योंकि इट्स मतलब कहीं यस और मैम। से भी प्रिपेयर करना, आई वुड नॉट से कि पूरा वेस्ट है। ऑफ कोर्स मैंने भी जब आपको एंड में टाइम मिले तब आप कॉम्पैक्ट कोर्स के लेक्चर्स या फिर ऐसा कुछ देख सकते हो, अगर कोई मैराथन आपके पास देखने का टाइम हो। बट बेसिक्स तो मतलब अगर आपने कहीं और से भी पढ़े तो इट्स नॉट लाइक कि वो पूरा वेस्ट है। नहीं तो आप मैम रिवाइज मैंने करो, पूरा आप यहीं से रिवाइज पढ़ा है मैम। करो। पूरा मैम दीपक सर और सचिन सर से पढ़ा है मैम पूरा। यहीं से पढ़े हैं सब्जेक्ट्स, फिर तो आपको यस कुछ मैम करने सारे की यहीं से जरूरत। पढ़े हैं।
फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप और नोट्स भी बनाए तब तो आप ऑफ कोर्स नोट्स का रिवीजन करो और पीवाईक्यू स्टार्ट करो, देन तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। तो मैम बट सपोज मैम मेरे वाले वो ऑपरेटिंग दो सिस्टम। सब्जेक्ट पूरे बाकी पड़े हुए हैं हाँ। मैम, टीओसी एंड सीडी, तो मैम पूरा ही बचा हुआ है वो, मेरे को वैसे उठाने का मन नहीं कर रहा उनको, मतलब लास्ट नहीं के लिए बट वो छोड़ दूंगा आप, मैम या फिर। नहीं नहीं, लास्ट के लिए क्या, अगर आपने ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट कर लिए तो बचा ही फिर यही है। और लास्ट के हाँ लिए मत छोड़ो। मैम। आई वुड से कि टीओसी जो है ना, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पता नहीं, मैंने भी कॉलेज में सुना था दैट मेनी पीपल फाइंड इट हार्ड, बट इंटरेस्टिंग है। आप शुरू करो, दैट्स लाइक एन एफर्ट यू हैव टू पुट, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? आपको शुरू तो करना ही पड़ेगा। तो और लेक्चर्स में ऐसा नहीं है, जैसे सर ने पढ़ाया है आपको कुछ भी समझने में तो डिफिकल्टी होगी नहीं, और तो आपको समझ आएगा ही ऑफ कोर्स, और समझ आएगा तो आपको फिर आपका फियर चला जाएगा। एंड टीओसी इज अ वेरी फन सब्जेक्ट। टीओसी के क्वेश्चंस भी मोस्टली बनने वाले ही आते हैं, तो वो हो जाएंगे। और कंपाइलर भी, आई रिमेम्बर मैंने आई थिंक गो क्लासेस से सबसे पहले मैंने कंपाइलर डिजाइन पढ़ा था। जो भी 3-4 घंटे के सारे लेक्चर्स थे, आई रिमेम्बर, आई डोंट नो कितने थे बट सबका ड्यूरेशन इतना ही था। तो मैंने नवंबर में 3x स्पीड, एटलीस्ट 3 या 3.5x पे मैंने सारे लेक्चर ऐसे देखे थे कंपाइलर डिजाइन के। दैट वाज द फर्स्ट सब्जेक्ट आई डिड फ्रॉम गो क्लासेस। एंड मुझे भी स्टार्टिंग में टफ लगता था, और जेन्युइनली ऐसा ही था कि मुझे लाइक कुछ टॉपिक्स थे जैसे लाइवलीनेस एनालिसिस, जो मैंने यूट्यूब से पढ़े थे, तो ये तो मेरा करने का हम्म। ही मन था कि मुझे लगा था छोड़ देती हूँ, बट फिर मैंने लेक्चर देख लिया कि चलो देख ही लेती हूँ। बट उसके बाद फिर बहुत अच्छे से समझ आया, एंड मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये तो काफी इजी सब्जेक्ट है। एंड ये दोनों है भी, बोथ टीओसी एंड कंपाइलर डिजाइन। तो जस्ट स्टार्ट विद द लेक्चर्स। अगर आपके सारे सब्जेक्ट हो गए तो आई वुड से कल यू शुड स्टार्ट फ्रॉम टीओसी ओनली। तो और फिर बाकी का आप पूरे नोट्स रिवाइज करो और पीवाईक्यू पे आ जाओ, ऐसे कर सकते हो। और आपको लगे कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस खत्म हो गया है, देन यू कैन स्टार्ट विद द टेस्ट सीरीज आल्सो, जिसमें सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज टेस्ट है। तो आप वो दो, लाइक एक दिन एक सब, एक 2-3 दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज करो, देन उसके पीवाईक्यूज अगर हो रखे हो तभी लेना सिर्फ, उसके बाद फिर आप टॉपिक वाइज टेस्ट दो उसका, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, तो ऐसे करके रिविजन स्टार्ट करो। बट यस, टीओसी तो आप कर दो स्टार्ट। इट्स कोडिंग, इट्स इजियर ऑल्सो, एंड इट्स अ फन सब्जेक्ट। आप पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा। यस मैम, कि लाइक मैम मतलब पैरेलली टीओसी और सीडी चलता रहेगा and वो वाले जो पहले कंप्लीट कर रखे हैं उनकी क्वेश्चंस के थ्रू मतलब मैं रिवीजन करता आप रहूंगा ऐसा। पैरेलली मत करना, पहले टीओसी कर लो, उसके बाद लाइक कंपाइलर हाँ यस डिजाइन मैम, मतलब करना। लाइक टीओसी देन सीडी। यस यस, ठीक है। मैम लास्ट रिक्वेस्ट मैम, कैन यू प्लीज शेयर योर लिंक्डइन मैम? लिंक्डइन आई गेस, ठीक है, मैं एंड में शेयर कर दूंगी अभी, क्योंकि आई गेस मेरा ऑफिस लैपटॉप है, इस पे मैं कुछ लॉग इन नहीं करती, तो आई वुड हैव टू सी कि मैं कहाँ से शेयर करूँ। अभी लेट मी टेक वन लास्ट डाउट मैम मैंने सर्च तो किया बट फ्रॉम वैसे आपकी मतलब प्रोफाइल अंशुल। मिल नहीं रही मैम। ओके, आई विल सी। ठीक है, मैं कहीं पे डाल दूंगी, या फिर नेक्स्ट वाले में आई विल कीप इट रेडी। अभी मेरे पास यूआरएल है नहीं, एंड लाइक दिस इज माय ऑफिस लैपटॉप, इसमें मैं कुछ ओपन नहीं करती। ओके। ओके सो मैम, या तो मैम वो सचिन सर मैम जो ग्रुप्स है ना मैम उनके अंदर आप थोड़ा एक बार डाल देना, या तो हो पाएगा क्या मैम ओके वहाँ पे ओके, या फिर ठीक है। कैसे? यस ठीक। श्योर। या फिर मैं ठीक है किसी मैम। वीडियो के कमेंट में डाल दूंगी, दैट्स ओके। इसी वाले के। ऑल राइट, ठीक है। नाउ लेट मी टेक द लास्ट क्वेश्चन। ओके थैंक यू मैम। ओके, या वेलकम। यस शरद, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ओके। हाय प्रकृति, क्या नाम है आपका? प्रगति। तो यस सी यस। प्रगति, मेरा सिनेरियो ये है कि लाइक आई एम सीनियर टू यू एक्चुअली। आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन या 2019। दिन मैंने गेट किया, बट गेट में होने के बाद जस्ट मुझे लगा कि जब गेट हो सकता है देन व्हाई नॉट यूपीएससी। तो मैंने यूपीएससी में ओके टाइम इन्वेस्ट किया काफी। ओके। फिर फिर यूपीएससी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि काफी कुछ डिपेंड करता है आपके, मतलब उस पे हम्म हार्ड वर्क के अलावा बाकी और इवेंट्स पे भी। हम्म तो फिर बैक टू प्रिपरेशन अगेन। बाकी सब तो ठीक है, बट मुझे कभी कभी कुछ टॉपिक में इतना मतलब डीप में अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो दिमाग में ये चलता रहता है, यार ये क्यों नहीं हुआ क्वेश्चन। तो फिर उसमें हम्म उस चक्कर में फिर 4-5 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। वेस्ट का मतलब हम्म। उसको रिसर्च करता रहता हूँ, ये कैसे होगा ये कैसे होगा। तो यूपीएससी की मेरी प्रिपरेशन मैथमेटिक्स में। बहुत अच्छी है गेट की। तो अच्छा। मुझे ये पूछना था कि आपके साथ भी ऐसा होता था क्या, कि जैसे कि कभी एक ही सब्जेक्ट में आपको बहुत टाइम लग गया हो,
हम्म। लाइक मतलब पूरा दिन निकल गया, एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 2-3 सब्जेक्ट इंटरचेंज मतलब अल्टरनेट नहीं हो पाए आपके, तो ऐसा होता था कभी आपके साथ प्रिपरेशन फेज में? हाँ, हाँ, ये तो लाइक बहुत नॉर्मल है। इनफैक्ट कभी-कभी अगर सपोज़ मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हूँ, जो क्वेश्चन गेट में आ चुका है ऑलरेडी, तो वो क्वेश्चन भी अगर मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर रात तक अगर मैं एक ही क्वेश्चन पे लगी हूँ, मैंने 3-4 जगह से उसका सॉल्यूशन देखा, फिर भी समझ नहीं आया, तो ये काफ़ी अननोइंग लगता है कि हर जगह से देख रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। फिर लाइक ऐसा मतलब आता ही नहीं था एंड तक कि देखने के बाद भी समझ नहीं आया। ऐसे भी क्वेश्चंस थे, आई रिमेंबर। तो उसका यही था कि उस टाइम के लिए फिर मैं बंद करके कुछ और करने लग जाती थी आफ्टर एक कुछ टाइम के बाद कि ठीक है, अभी आगे कुछ और करती हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करना है इस पे, क्योंकि मे बी फिर फ्रेश माइंड से समझ आए। तो मे बी मोस्टली कभी-कभी होता था कि मैं अगले दिन सुबह उठ के फिर फ्रेश माइंड से कर रही हूँ, तो मुझे सॉल्यूशन देख के समझ आ गया कि चलो ऐसे हो रहा है। या फिर एक क्वेश्चन मुझे नहीं पता कौन-सा था, बट कंप्यूटर नेटवर्क का कोई तो क्वेश्चन था जो मैंने पीवाईक्यू जिसका सॉल्यूशन मैंने बहुत बार देखा, स्टिल मुझे वो नहीं समझ आ रहा था। देन एंड में मैंने फिर यही सोचा कि छोड़ो अब इसे, ठीक है, अब बाकी हाँ, क्वेश्चंस वो कर एक्चुअली लेती इसलिए हूँ। होता है कि ब्रेन में तो वो पॉपकॉर्न एक मेथड होता है जिसकी वजह से ब्रेन क्या करता है, कुछ चीजों को पिक करता है, कुछ चीजों को हटा देता है। तो वो इस वजह से होता है, जैसे आपको कभी कभी कुछ नाम हमेशा याद रहते हैं, कुछ नाम आप हमेशा ही भूल जाते हैं, तो वो राइट, इस तो वजह से ये हो जाता है। हाँ, तो ये नॉर्मल है क्योंकि 10 सब्जेक्ट है, इतने टॉपिक्स हैं, अच्छा, तो इट्स नॉट। हाँ। ये पूछना था जैसे कि मुझे अभी क्या है कि मेरे सारे सब्जेक्ट तो कवर हैं और अच्छे से कवर हैं, एल्गो हुँ, वगैरह मुझे बहुत अच्छे से आती है, बट ये है कि 2-3 महीने हो गए हैं रिवाइज नहीं करने का, क्योंकि टाइम ही हुँ, नहीं मिल पाता, जॉब होती है, फिर जॉब के हाँ, बाद में फिर तुरंत से आप स्विच करो अपनी पढ़ाई में, तो फिर ये हाँ, होता है कि जो नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक है उनको पढूं या रिवाइज करूं, तो उनमें हुँ। डर लगा रहता है कहीं ऐसा हो मैं भूल गया तो क्या होगा। तो ऐसा आपके साथ होता था मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे हाँ, कि? ये तो लगता ही है, तभी मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितनी बार रिवाइज़ किया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट मैं भूल रही हूँ। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है ना, तो मतलब इंस्टेंटली नहीं, बट कहीं न कहीं अगर आपको पता है कि मैं 3 सब्जेक्ट कर चुका हूँ और ये मैं भूल रहा हूँ, तो इफ पॉसिबल ना, तो अगर लाइक आपका फ्लो ठीक चल रहा है, आपने नए सब्जेक्ट्स भी कर रहे हो, तो आप ऐसे 2 हफ्ते में ऐसे 1-2 दिन टाइम निकाल सकते हो कि इस दिन मैं पहले वाला सिर्फ़ थ्योरी रिवाइज़ कर सकता हूँ। ऐसे करके, क्योंकि जो मेरे हिसाब से जो हमने लॉन्ग नोट्स जहाँ से पढ़े होते हैं पूरा लेक्चर, उसका रिवीजन भी करना ज़रूरी है। लाइक आपने तो पहले भी दे रखा है, तो लाइक इट डिपेंड्स, मतलब वही सबका अलग-अलग होता है। पर आप वो एंड तक लगता रहता है, मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं होगा कि आपको लगेगा हाँ, अब मेरी तैयारी तो बिल्कुल अच्छी है, इस बार के गेट में मेरे पक्का अच्छे मार्क्स आएँगे। लाइक जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो मेरे जूनियर्स भी हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता कि आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, मैं गेट में मेरी रैंक बिल्कुल ऐसी आ रही है। बट अच्छा, इट्स जस्ट दैट कि आपके अंदर वो होप रहती है कि हाँ, मैं ले आऊँगा रैंक, ऐसे हाँ, करके, ये तो मैं वो समझ चीज़ें गया हूँ कि रहती है। स्ट्रगल तो लास्ट मोमेंट हाँ, तक करना ही पड़ेगा। राइट, अच्छा, जैसे राइट। मैंने 2022 में लाइक उबर की जॉब छोड़ के मतलब मैंने हाँ, प्रिपरेशन का स्टार्ट किया था, तब जॉब मतलब यूपीएससी के लिए, तो तब जॉब मार्केट का ये सीन था कि एसडी रोल पे जा रहे थे बहुत सारे लोग। तो अब मुझे नहीं पता है कि अब जॉब मार्केट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि फ्रंट एंड तो पूरा खत्म हो गया है, अब फ्रंट एंड पे तो कोई काम करता भी नहीं इतना, क्योंकि सब चैट जीपीटी या इनका यूज करके प्रॉम्प्टिंग करके हो जाता है। तो अब मार्केट का क्या सिनेरियो है कि मतलब क्या क्या डिमांडिंग चल रहा है इस टाइम पे मार्केट में? एसडी के लिए भी कोई रोल है भी, या फिर सारे डाटा साइंस या फिर एआई में मतलब कन्वर्ट हो चुके हैं रोल, मशीन जी, लर्निंग में या फिर? हाँ, तो इसके लिए मतलब बहुत मतलब एक्यूरेट आंसर तो मैं नहीं दे पाऊँगी, मैं लास्ट ईयर की पास आउट हूँ, तो लाइक जो मेरा भी फ्रेंड सर्कल है, तो डिस्कस तो हम यही करते हैं, मोस्ट ऑफ द मतलब ज़्यादातर जितने भी लोग हैं, सब ही यूज़ कर रहे हैं, राइट? मतलब कोपायलट, क्लॉड या कुछ ना कुछ सभी यूज़ करते हैं, एंड मोस्टली उससे ही करवाते हैं, बट स्टिल समहाउ जितने भी लाइक मेरे हैं फ्रेंड सर्कल में लोग, तो दे आर एट दिस प्रोफाइल ओनली, लाइक एसडी प्रोफाइल पे हैं बहुत सारे लोग। तो मतलब इस चीज़ से मैं इतना एक्चुअली कमेंट नहीं कर सकती कि अभी एसडी आई वुड से कि आई एम नॉट टू श्योर दिस, आई एग्री, लाइक अगर पर्सनल लेवल पे आप मेरे से पूछ रहे हो देन यस, मेरा भी जितना मोस्टली काम होता था, लाइक अभी लाइक मैं नेटवर्क इंजीनियर वाली प्रोफाइल में हूँ, तो इसमें तो एआई का इतना कुछ नहीं है, इट्स प्रीटी मच मतलब मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत है, तो इस चीज में कुछ कोपायलट का यूज नहीं है जो मेरी नेटवर्क इंजीनियर की प्रोफाइल है। बट इससे पहले जो मैंने इंटर्नशिप कर रखी थी इन इवन जो मैंने एज अ मशीन डेटा साइंस वाली एक जगह मैंने इंटर्नशिप की थी, जहाँ पे मेरा एमएल मॉडल्स पे मुझे कुछ ना कुछ ट्यून करके मॉडिफाई करना था, तो उस रोल के लिए भी आई यूज टू यूज एआई, एंड फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो एसडी वाले हैं, एवरीवन इज यूजिंग एआई, बट
like what will exactly happen or anything, I mean, I haven't done ज़्यादा अच्छा, तो research on that. एक चीज और पूछनी थी कि आपने मतलब कितना प्रिपरेशन में डन। एक्चुअली मुझे आपका आइडिया नहीं, मैं पहली बार आया हूँ उसमें, तो मुझे पता नहीं है कि आप मे भी आपके कई सेशन हो चुके होंगे, बट मुझे आइडिया नहीं कि आपने मतलब कब पास आउट किया, कब आपने प्रिपेयर किया, कितने टाइम के लिए। तो मैं लास्ट ईयर की पास आउट हूँ। मैंने बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस में 2021 से 2025 में, और मेरा टारगेट स्टार्टिंग में प्लेसमेंट ही था। एंड मेरी प्लेसमेंट लगी थी जून एंड में, जब लाइक फाइनल कंफर्मेशन आ गया था मेरे पास दैट नाउ आई एम प्लेस्ड। बट मतलब मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, और मेरे पास एक दो और ऑफर्स थे, बट मैं किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं थी। तब मैंने सोचा था कि गेट एक ऑप्शन है, मुझे ये देना है, विच इज मतलब पिछले साल जून में। तो फिर मैंने, मेरे पास जो ऑप्शंस थे उसमें से वो वाली कंपनी पिक की जिसमें वर्क कल्चर सबसे बेस्ट था, और मेरे पास सबसे ज़्यादा टाइम रहता प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने वो वाला ऑफर एक्सेप्ट किया था, और फिर जून के एंड अराउंड मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मेरी जॉइनिंग अगस्त से थी, तो मेरे पास पूरा जुलाई था प्रिपेयर करने के लिए। बाकी मैंने जुलाई से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, एंड वीकडेज मुझे ऑफिस जाना होता था, बट स्टिल आके आई यूज टू स्टडी लाइक 3 से 4 घंटा एवरी डे। और वीकेंड मेरा सुबह उठने से लेके सोने तक सिर्फ पढ़ाई में जा रहा होता था। एंड उसके बाद जैन में मैंने पूरा ऑफ लिया था। लाइक मेरी टीम का कल्चर था इतना अच्छा दैट मुझे लीव्स मिल गई थी, उसमें मुझे कुछ जस्टिफाई नहीं करना था। तो मैंने जैन में आफ्टर 15 जैन गेट एग्जाम तक मैंने पूरा ऑफ लिया था। ओके ओके। यस। तो मतलब इतना सफिशियंट है, मतलब वो हो तो जाएगा, ये तो मुझे भी पता है कि एक बार हो चुका है तो दोबारा भी हो जाएगा, बट हाँ हाँ यही रहता है कि इससे अच्छा हाँ, मतलब जैसे कि अभी मैं एक क्वेश्चन और ये था कि लाइक हम्म, जैसे आईएसटी है, तो यहाँ से कितने चांसेस है कि फॉरेन के लिए निकल सके। आपको लेट तो नहीं हो रहा? सॉरी, नहीं ठीक है, आई कैन आंसर दिस। सी फॉरेन बस मैं अगेन इट, 2 मिनट और लूंगा, बस 2 मिनट। हाँ देखो, मुझे ये ये पूछना था पर्सनल। हाँ क्योंकि यहाँ से निकलना, जैसे आईआईटी बी से मिल जाए या फिर आईएससी मिल जाए, तो यहाँ से फॉरेन के लिए लाइक यूएस या मेनली यूएस, और कोई कंट्री नहीं, तो कितना ठीक है। चांसेस है कि वहाँ के ये हाँ, निकल सकते हैं। तो ये किसी कॉलेज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर ऑन कैंपस देखे तो फॉरेन ऑफर्स एमटेक के लिए ऐसे डायरेक्ट तो मैंने नहीं देखे, जितना मैंने रिसर्च किया कि ऐसे डायरेक्ट यूएस बेस्ड लोकेशन के लिए अगर कोई कंपनी रीच आउट कर रही है, तो लाइक वो पर्सनली डिपेंड करता है। अगर आपको बाहर ही जाना है देन इट डिपेंड्स कि या तो आप अभी से ही फिर बाहर की जो एग्जाम्स वो एक्सेप्ट करते हैं वो सारे दे के रख लो, या फिर अगर आप एमटेक के साथ ही हो तो अगर आपको बाहर ही जॉब करनी है या फिर बाहर जो भी करना है, अगर एजुकेशन के लिए जाना है जिस भी चीज के लिए, तो आपको उसके लिए काफी आई थिंक रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या एक्सेप्ट करता है कौन सी कंट्रीज में। तो जो भी एग्जाम्स है आप वो सारे दे के रख लो, उसके अलावा फिर आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। या फिर अगर आप किसी को जानते हो तो आप रेफरेंस के लिए ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में हो, अगर किसी एमएनसी में हो ऑलरेडी, देन आप देख सकते हो कि कितना स्कोप है आपकी टीम से किसी प्रोजेक्ट लाइक वर्क के थ्रू ही बाहर शिफ्ट करना इन अ डिफरेंट कंट्री। तो वो आई गेस आपका एक पर्सनल एफर्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है और कितना एफर्ट लगेगा उस चीज के लिए। कॉलेज का उतना रोल इसमें नहीं है, इट डिपेंड्स आपके खुद में ही। कॉलेज में ये है कि आपको एक अच्छा, आपके रेज्यूमे में या फिर आपके एसओ लाइक कवर लेटर में आपको एक स्ट्रॉन्ग चीज में रिफ्लेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी दे नो कि इफ यू आर फ्रॉम आईएससी, तो आप मतलब इस टॉप लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट से हो, तो आपका फिर वो लेवल इतना अच्छा होगा कि आपने काफी एडवांस चीजें पढ़ रखी होंगी, और आप यूज टू हो गए एक रिगरस रूटीन से, और आप कंसिस्टेंट हो गए और एक डिलिजेंट पर्सन हो गए। तो ये रिफ्लेक्ट करता है एज अ कॉलेज इन योर प्रोफाइल। बट आई फील लाइक कि बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, लाइक हाँ, वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देखना पड़ेगा क्या क्या लगता है बाहर जाने के लिए। ओके। एज तो फार जैसे एज रिवीजन, ऑन कैंपस है वो तो इतना आई आई वुडंट थिंक कि ऐसा नॉर्मली होता है कि डायरेक्ट ऑफ शोर कंपनीज आती है रिक्रूट करने के लिए। अच्छा अच्छा। तो रिवीजन का आपका कैसे रहता था, मतलब एक सब्जेक्ट कितने दिन में आप कर लेते थे रिवाइज, लाइक कि अगर जैसे कोई सब्जेक्ट अभी खत्म किया है तो फिर इतने दिन के बाद वो गो थ्रू एक बार करना ही करना है। मतलब मैं जब भी मुझे लगता था, मैं लाइक आई वुड से कि मैंने नवंबर तक 7 जो कोर सब्जेक्ट्स है सीई और डीएस मैंने ऐसा कभी रिवाइज नहीं करा, क्योंकि मैं प्लेसमेंट की प्रेप करी थी तो स्ट्रांग थे। उसके अलावा मैथ्स भी क्योंकि मेरी कंप्लीट ही नहीं हुई थी पूरी नवंबर तक, तो इसके अलावा जितने भी 7 सब्जेक्ट्स हैं मैंने 3 बार तो रिवाइज कर लिए होंगे, क्योंकि मैं बहुत ऐसे रैंडम करती थी कि अब ये सब्जेक्ट हो गया, लाइक सीएन सीओए सपोज केवे अभी
2-3 हफ्ते हो गए और मुझे बिल्कुल याद नहीं है, तो मैं एक ही दिन बैठ के उसके पूरे नोट्स खोल के बैठ जाती थी कि आज ये रिवाइज करना है। तो मेरे साथ ये होता था कि स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी टाइम लगा रिवाइज करने में, बट जो भी सेकंड और थर्ड टाइम तो फिर बहुत ही कम लगा था कि ऐसे बस पेज पलटते जाओ, या पीडीएफ है किसी सब्जेक्ट की तो पीडीएफ स्क्रॉल करते जाओ फटाफट, क्योंकि फिर एक बार रिवाइज कर लिया तो वो यूज्ड टू हो जाता है, आपको पता है कहाँ पे क्या टॉपिक है, कैसे है, कौन-सा चीज़ आपको आता है, कौन-सा नहीं आता, तो फिर माय सेकंड लास्ट टाइम से बहुत ईज़ी होता है रिवाइज करना। लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब कभी कभी आपको भी ऐसा जाता था कि आपने पढ़ाई में मतलब पूरा जोर लगा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका जो आपने डे के लिए शेड्यूल बनाया वो ना कंप्लीट हो पा रहा हो? जैसे कि मैंने बनाया कि आज 4 सब्जेक्ट करने हैं, इससे थोड़ा-थोड़ा करना है, पर कितना भी ताकत हाँ, लगा लो वो 1-2 ही लेक्चर हो पाते थे। ऐसा भी हाँ, नहीं? मतलब 1-2 तो नहीं, मतलब मैं सोचती थी कि मुझे आई वुड से मेरा टारगेट ऐसा होता है कि मैं 10 लेक्चर देखूँगी, फिर मेरे से 5 हो पाते थे, 5-6, अगर टफ है तो मेबी 3-4 लेक्चर्स हुए, या फिर अगर किसी दिन बहुत कम हुआ तो 3 लेक्चर्स हुए। बट हाँ, मोस्टली तो इनफैक्ट अभी भी मेरे साथ यही होता है। मैं अभी डीए का कोर्स कर रही हूँ। मैं अभी स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग पे हूँ। मैं डेली सोचती हूँ कि मैं 5 लेक्चर करूँगी, पर लाइक आज आज मैंने 2 ही देखे। तो ये तो स्टार्टिंग से ही रहता है, क्योंकि टारगेट हमें यूजुअली थोड़ा टाइट ही, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम सोच के करते हैं कि हम ज़्यादा सेट करेंगे। वो हम अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं कि सिलेबस तब तक खत्म होना है तो आज इतने लेक्चर देखने ही पड़ेंगे, बट वो हो नहीं पाता। बट वही है कि ट्राई ही कर सकते हैं कि करें कंप्लीट, और अगर लगे कि बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं तो फिर वही है कि जितना एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाएँ। आई नो विद जॉब तो, और आप लाइक जितना आप जितने टाइम से जॉब कर रहे हो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। मैंने तो जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, लकीली मेरी कंपनी ऐसे थी भी थोड़ी अच्छी, और मैं फ्रेशर थी तो तब मेरे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं थी। तो आई अंडरस्टैंड कि विद टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है तो टाइम निकालना मुश्किल होता है। मैं तो ऑफ़िस में भी 2-3 घंटा पढ़ लेती थी, बट फिर वही है कि ओके, आपका टाइम ज़्यादा नेक्स्ट देना सेशन कब पड़ेगा। होगा? नेक्स्ट फ्राइडे। आप नेक्स्ट फ्राइडे आप आएँगी ना? यस, यस। ओके, थैंक यू। ओके। Yeah, hello. हाँ, यस। Yeah, Pragati, I'm audible. यस मासूम। Yeah, yeah. So means यस। मेरा भी ऐसा है कि मैंने इस ईयर मीन्स 2026 में गेट अटेम्प्ट किया था. सो मेरे 63 मार्क्स आए थे एंड आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप बिकॉज ओके। मेरा टारगेट था कि मीन्स एटलीस्ट टॉप 5 आईआईटीज या टॉप 7 आईआईटीज मिले. सो अभी मैंने हाँ। मीन्स स्टार्ट तो किया है, तो मीन्स अभी मैंने लेक्चर्स देखे, सब चीज़ सही है. फिर मैंने वीकली क्विज़ेस अटेम्प्ट किए एंड आई अटेम्प्टेड द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऑल्सो. सो दोनों में मेरे मार्क्स सही थे. मीन्स हुँ, वीकली क्विज़ेस में मेरे 25 में 20 प्लस मार्क्स थे एंड इसमें ये हुँ। सब्जेक्ट वाइज में मेरे 40 प्लस थे. बट टॉपिक वाइज में मुझे ओके। ऐसा लगा कि जो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़ा ऐसे हार्ड लेवल की, मीन्स मैंने सब पीवाई क्यूज भी कर लिए, सब्जेक्ट ये अपने क्विजेस भी कर लिए, तो उसके बाद भी थोड़े मुझे टफ लगे 2-3 क्वेश्चन. तो उस लेवल के क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, अगर हमें मतलब मटेरियल कवर करने के बाद भी ऐसा लग रहा है. हुँ। हाँ, ओके। सी, अगर आपको सिर्फ़ अगर जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आपको 2-3 ही टफ लग रहे हैं, तो आई फ़ील कि आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। क्योंकि जो टॉपिक वाइज़ टेस्ट है या फिर जो सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट हो गए, वो उसके लिए आपको कहीं और से प्रैक्टिस नहीं करनी। बेसिकली आप गेट एग्ज़ाम के लिए यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अगेन आपको अगर अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है कि आपको कोई सब्जेक्ट आता है कि नहीं, उसके लिए आप पीवाईक्यू देखो। ठीक है, अगर आपसे 70% पीवाईक्यू बन रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको सब्जेक्ट आता है। बट उसके बाद भी अगर आपसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में मान लो आधे ही क्वेश्चन हो रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि आपका वो सब्जेक्ट वीक है, या फिर अगर आपसे वो टॉपिक वीक है, ठीक है, वो क्वेश्चंस होते ही इसलिए कि आप कुछ नया सीखो, वो सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए होते हैं। तो आपको वो क्वेश्चंस बने उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आप बस वो क्वेश्चंस करते रहो, तो फिर आपका गेट एग्जाम बन जाएगा बेसिकली। तो जो या क्वेश्चंस नहीं हो रहे उसका फिर आप सोल्यूशन देखो कि ये कैसे सॉल्व होने हैं। ठीक है, वो सोल्यूशन समझने की कोशिश करो, बस उतना ही इनफ है। एक तो जो क्वेश्चंस हो गए उन्हें भी वेरीफाई करो कि ऐसे ही होना था या नहीं, और जो क्वेश्चंस नहीं हुए उनका आप सोल्यूशन देख लो गेट ओवरफ्लो पे, या फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका गेट ओवरफ्लो पे भी सोल्यूशन नहीं है, तो वो आप किधर भी एआई चैट जीपीटी या कहीं पे भी डाल के बेसिकली बस उसका सोल्यूशन देख लो कि ये कैसे होना है, एंड दैट इज इनफ। उससे आगे आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं जितने मैक्सिमम आप दे पाओ। लाइक जब मैं लास्ट ईयर दे रही थी तो मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट्स के नहीं दे पाई थी, बट मैंने जितने भी दिए थे तो मेरे से इतने मार्क्स काइंड ऑफ नहीं आ रहे थे। तो और मैंने उन टेस्ट से बहुत सीखा था, एंड जेन्युइनली एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट कंपाइलर डिजाइन का ही था आई थिंक, या टीओसी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो टीओसी का था, आई डोंट रिमेम्बर कि वो इन मॉक टेस्ट में था, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में था।
या AIMT में था, बट कहीं तो था, और वो सेम आ गया था गेट एग्जाम में, और वो काफी ट्रिकी था, इतना ज्यादा कि जो दूसरे कोचिंग प्लेटफॉर्म्स है उसमें से भी एक दो ने उसका गलत सोल्यूशन बताया था। लाइक एग्जाम के बाद आती है ना वीडियोस, तो हाँ हाँ कोई सब्जेक्ट, लाइक वो क्वेश्चन था, MSQ क्वेश्चन था, मेरी शिफ्ट 2 थी उसमें से। तो मतलब बहुत ट्रिकी भी नहीं था ऑफ कोर्स, बट थोड़ा ट्रिकी था स्टिल वो। और हाँ, मेरा भी शिफ्ट हुई था इस हाँ, साल का। यस, तो फिर वो मतलब ये जो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो, ये ना क्वेश्चंस नहीं बनने पे आप डिमोटिवेट मत हो। इस टॉपिक का अगर आपसे PYQ हो रहा है और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आधे ही हो रहे हैं बस, या चलो कुछ भी नहीं हो रहे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपसे सीखने के पर्पज से दो। अगर आप 6 क्वेश्चंस एक टॉपिक के कर रहे हो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में गलत, तो आप वो 6 नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हो जो मे बी गेट में इस बार आ सकते हैं एज ट्रिकी क्वेश्चंस। कुछ तो गेट में क्वेश्चंस बहुत बेसिक आएंगे, कुछ ट्रिकी आएंगे, और जो ट्रिकी आएंगे मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी आप AIMTs मॉक टेस्ट और इधर दे चुके होगे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। ओके, तो या मीन्स मेरा अभी हाँ, गोल ऐसा है कि मेरे 63 मार्क्स ऑलरेडी आए थे, तो मेरी रैंक 1000 बनी थी। तो अभी मेरा ये गोल yes, है कि इस साल में एटलीस्ट मैं 80 प्लस जाऊँ, 75 प्लस जाऊँ, ये मेरा गोल है। सो आई एम ट्राइंग कि मतलब yes, टफेस्ट टफेस्ट क्वेश्चन भी मैं कर पाऊँ, एक्सप्लोर कर पाऊँ, ये मेरा हाँ, गोल है। राइट, क्योंकि तो मेरे हाँ, सब्जेक्ट वाइज भी दिए हैं, तो मेरे 45 आए थे। डिजिटल का मैंने दिया तो मेरे 45 आए ओके, थे। मैंने यूएससी तो मेरे 25 में 20 21 अराउंड आए थे। बट राइट, जब मैंने सब्जेक्ट टॉपिक वाइज दिए तो मीन्स आई फॉल मीन्स 17 18 मार्क्स आए थे। आई वाज थोड़ा हाँ, सा डिमोटिवेट हो गया राइट, कि क्योंकि मम्मी सी थोड़ा टॉपिक ड्रॉप वाइज आउट। में क्या होता है कि एक ही टॉपिक है, अब उससे देखो अगर आप एक जो भी टॉपिक है, तो उसमें से वैसे बेसिक क्वेश्चंस तो 2 3 ही है जो मतलब नॉर्मल उस उधर से आने लायक है। तो बचे हुए हम्म। क्वेश्चंस फिर वो इन डेप्थ या फिर कहीं ट्रिक से बनाते हैं। तो आई फील जितने भी मार्क्स आपको स्टैंड आउट कराएंगे गेट एग्जाम में वो यही क्वेश्चंस है। तो हाँ डोंट थिंक वही कि वही। आप एक्स्ट्रा क्या करो कि इसमें भी अच्छे मार्क्स आए। इंस्टेड आप ऐसे सोचो कि आप ये टेस्ट जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने अटेम्प्ट करो, और एक बार उसका रिवीजन भी करो, क्योंकि आप नई चीजें सीख रहे हो, राइट? आप इतने टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे, तो आप एक बार या तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अगर कोई काफी ट्रिकी चीज है, या फिर अपनी किसी नोटबुक में नोट कर लो जो भी आप नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो दैट आप ये भूलो ना और ये आपको याद रहे। सिर्फ इसको याद रखना ही मोर देन इनफ होगा। और टाइम है तो कोर सब्जेक्ट स्टिल रिवाइज करते रहना, क्योंकि आपने अभी गेट दिया है, नेक्स्ट ईयर गेट तक आपको ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो आपको याद हो। तो उसके लिए आप, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स आए थे ऑलरेडी, तो आपको बस इतना ही करना है कि जो भी आपके नोट्स हैं वो रिवाइज करते रहना। उसके अलावा हाँ, अबाउट दिस टेस्ट तो आई वुड से इतना ही कि जस्ट कीप गिविंग एंड राइटिंग वॉट एवर यू लर्न, वो नोट डाउन या करते रहो। वो तो मैं कर रहा हूँ। राइट। जैसे मैंने लास्ट ईयर दिया था तो लास्ट टू लास्ट तो मेरी रैंक बहुत खराब आई थी। फिर देन आई प्रिपेयर्ड, सो मैंने जॉब के साथ प्रिपेयर किया था लास्ट ईयर। सो उतना टाइम मिला नहीं, सो 60 मार्क्स तक आ गए थे। एंड जहाँ से मैंने पढ़ा भी तो वहाँ बहुत सरफेस लर्निंग थी। मैंने भी लेक्चर्स लिए एंड देखा तो मीन्स बहुत अच्छी लर्निंग, मीन्स बहुत इन डेप्थ है। सो आई एम थिंकिंग हाँ वो तो सही है, बट हाँ मैं ये सोच रहा राइट, हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं तो वहाँ राइट, थोड़ी इंप्रूवमेंट यस, है वो ज़्यादा अच्छा होगा। कि जितना हो सके उतना मीन्स टफ टफ लेवल के क्वेश्चंस मीन्स अगर मेरा टारगेट है मैं 75 प्लस लाऊं तो मेरा बेसिक प्रिपरेशन से तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि उतनी प्रिपरेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। राइट, या हाँ, राइट। तो अब वैसे आपको जो भी सब्जेक्ट टफ लगता है उसके लेक्चर्स देखो, और हाँ, ये सब्जेक्ट वाइज बस ट्राई करो जितने ज्यादा आप दे पाओ। ओके, या अगर इनके लेवल के क्वेश्चंस दैट वुड प्रैक्टिस बी करें तो आई गुड। थिंक हाँ, सो तो मीन्स रेफरेंस बुक्स वगैरह कुछ आई थिंक सो प्रैक्टिस कर। मैंने एक है थे, मैंने उससे बात की थी तो नहीं, उन्होंने आई वुड बोला। नॉट से कि वो, हाँ, हाँ तो मैंने उससे बात की तो मतलब बोला कि अगर ऐसा लग रहा है हाँ, कि सारा मटेरियल कवर करने के बाद भी, प्रैक्टिस करने के बाद भी थोड़ा गैप है, तो हम रेफरेंस बुक्स में देख सकते हैं अगर वहाँ ऐसा लगे। थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं जो मीन्स 5 10 20% टफ क्वेश्चंस है, बिकॉज स्टैंड सी आउट आई करने के मीन लिए आई आई बिलीव डोंट थिंक कि कि उसकी, हाँ, सो या क्योंकि आई स्टैंड डोंट आउट थिंक कि करने आपको कोई रेफरेंस बुक की जरूरत है। आई वुड से कि अगर कोई सब्जेक्ट है जो हम्म, मतलब जो आपको लगता है कि इतना आपने सरफेस लेवल पे ही पढ़ा है, उसके आप लेक्चर्स विदाउट मेकिंग नोट्स ऐसे देख सकते हो, जस्ट टू सी। अगर आपको हम्म, लग रहा है कि ये सारी चीजें हैं तो आप फॉरवर्ड कर करके मतलब लेक्चर्स देख सकते हो, अगर आपने कहीं और से पढ़ा है तो। वो भी उन सब्जेक्ट्स के जो आपको लगता है इधर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रखा है, ठीक है? उसके अलावा या या फिर आप कॉम्पैक्ट कोर्स से देख सकते हो। बट रेफरेंस बुक आई वुडंट से सो, क्योंकि ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस होते हैं, अभी इतने टॉपिक वाइज टेस्ट है। अगर आप सिर्फ इतने ही याद करके नोट कर लो, लाइक आपने एक टॉपिक का टेस्ट दिया, तो जस्ट 2 3 वीक हम्म, बाद आप एक बार देखो कि मतलब आपको याद है कि नहीं चीजें। उसके लिए या तो एज यू सेड आप लिख भी रहे हो, तो क्योंकि इतने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, फिर अबाउट 13 या 15 मॉक टेस्ट भी होंगे उसके अंदर फुल लेंथ। या तो मॉक टेस्ट में भी काफी चीजें होती हैं टू लर्न। वो 65 क्वेश्चंस में भी बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी सॉल्व करने हैं। प्लस जब मॉक टेस्ट देते हैं तो वो एक अलग ही जर्नी है, उससे उसके लाइक
टेस्ट आप कैसे अप्रोच करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम भी टाइम बेस्ड टेस्ट भी है ये, तो हाउ यू अप्रोच टेस्ट ये सब भी बहुत मैटर करता है। या तो वो मैंने फील किया था, जैसे मैंने मॉक टॉपिक वाइज टेस्ट दिए तो देने हैं वहाँ आपको। 45 मिनट्स थे, वहाँ थोड़ा इशू हुआ, लेकिन जब मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए तो वहाँ 90 मिनट्स में बहुत आराम से हो गया, मार्क्स भी अच्छे हैं, 45 तो मेरे यस मतलब यस। आई वाज हैप्पी कि इस बार अच्छा, से। एक एक मेरा डाउट था, एक पूछना था। Actually, let's wind this up because 1.5 hours was यस maximum. I'm really sorry. Maybe on Friday we can discuss, okay? Because ओके, ideally it's supposed to नहीं be one आपसे hour नहीं था, only. मासूम So से मैं पूछ रहा था कि एक क्वेश्चन मैंने भेजा था उसका सोल्यूशन मिल सकता है क्या मासूम, क्योंकि वो दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं। टेलीग्राम पे हो यस, आप? हाँ मैं हूँ वैसे, ये तो मतलब डिफिकल्ट मेरा चला एक नहीं था डाउट मैंने। था। या I'm really sorry, guys, but like to cut this like this. But if there's a question, so I will take a screenshot of this and मैं देख लूंगी if there's a solution या फिर anyone will solve it, ठीक है? या आप गो पे भी डाल सकते हो, बट मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैंने बट फॉर डाला, बट नाउ वहाँ पे सब रॉन्ग सोल्यूशन दिया। ये क्वेश्चन है मासूम, क्या आपको बात हो सकती है मासूम से? तो सी हाँ, 1-on-1 तो अभी नहीं हो पाएगी बिकॉज आई हैव नहीं, टू। 1 on 1 नहीं करना है मुझे, मुझे या बस फिर पूछना है कि आप टेलीग्राम पे आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज हो? कर दो। हाँ हाँ तो मैं टेलीग्राम हूँ, ग्रुप में हूँ। आपकी आईडी क्या है टेलीग्राम पे? नहीं यही नहीं है, मेरा सेम नेम होगा, मासूम मित्तल ही है ठीक है, मैं एक बार ओके, देख लेता हूँ। ओके, थैंक यू। मेरा। थैंक यू एवरीवन। वी कैन लाइक अगर कोई किसी का क्वेश्चन रह गया, आई एम रियली सॉरी, आई नो यू हैव गिवन सो मच टाइम, बट आई नो द नेम्स जो भी है, मयंक एंड लाइक एवरीवन एल्स, यू कैन if possible for मैम you मेरा guys to मैम join on Friday बस and I टू will pick up. मिनट्स I'm really sorry, actually I also have to ओके be मैम, somewhere ओके right ओके now, ओके otherwise I ओके would have मैम, been out. आई अंडरस्टैंड। ओके। Thank you everyone, bye, good night.